On that note, I open the platform for all of you to think and respond. कि ultimately क्या लगता है आपको? As you all know, our next segment is Q&A, Speak Up Q&A, where you come and speak on what do you think about the whole thing. We have chosen to be very selective about Q&A. Q&A हम तभी करेंगे जब हमको लगेगा टॉपिक है जहां पर ज्यादा लोग आकर बोल सकते हैं. इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया that I must open the platform for people to come and speak, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें कहनी है. So here we go. आपके साथ आपके लिए मैंने लिंक शेयर किया है. आप लोग जो लोग बोलना चाहते हैं, you can freely come, connect and speak. Please keep the time limit in mind and also the language. Language is very important. आप वही बात अच्छे से बोल सकते हैं. So please choose your words carefully. Try to be short, but please come and speak what you think, because according to me, it's a story that started from SSR and has reached to SRK. But जो चीज सबसे कॉमन है वो है बॉलीवुड का साइलेंस, बॉलीवुड की चुप्पी, जो उस दिन भी थी और आज भी है. बॉलीवुड ना कुछ देखता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ बोलता है. आज शाहरुख खान भी अकेले खड़े हुए हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो मजबूरी हो. लेकिन फैक्ट ये है कि उनके फेवर में आकर बोलने वाला इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ, वो है सुनील शेट्टी. और उसने भी क्या बोला? ही इज अ किड, let him breathe. Sushant was also a kid for somebody. Why didn't you come, Mr. Sunil Shetty, and ask that he should get justice, and you should join the campaign? Justice for Sushant campaign को आपको ज्वाइन करके कहना चाहिए था, let him get justice so that his soul rest in peace. But आपने उस दिन बोला नहीं. Chaitanya Kumar has joined. Chaitanya's video is not there right now. The moment he joined, his video is visible or he's visible, I'll put him on air. Others can also come and speak. What do you think? Chaitanya, you are not visible. Maybe set your camera right. The moment he comes, and we are basically asking that is SRK's case an example of how the Bollywood behaves, और क्या बॉलीवुड ने 15-16 महीने में कुछ सीखा? अभी भी अपने लोगों का साथ देना इन्होंने नहीं सीखा. सुशांत का भी साथ नहीं दिया और आज शाहरुख खान का भी साथ नहीं दिया. शाहरुख खान वही शख्स हैं जिनको सुशांत पूछता था और शाहरुख ने सुशांत का माखौल बना के रख दिया. ये पहला शख्स है जिसको वैल्यू समझ नहीं आई कि कोई आदमी आपको पूछ रहा है और आप उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और शायद उसी मजाक का नतीजा है ये पोएटिक जस्टिस जो आज हो रहा है. This is what I think and this is how I think. Just waiting for people to connect. Quickly connect, because that will save a lot of time. Let me have some water because I have been on and on without taking a break. So Tanu Nautiyal has joined. Yes, Tanu, just give me a second. Let me just put your... Good evening, Tanu. Yeah, please, Tanu, go ahead. Go ahead, please. बोलिए Tanu. Yeah. क्या लग रहा है? बहुत सही हुआ है मेरे हिसाब से तो, and it is like some justice, some cosmic power has been, taking revenges. मतलब इस तरह से होना, and I was shocked when I heard that Sunil Shetty, he is in favor of Aryan Khan. Such a fit man. मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट जो भी बोला हम उसको एनालिसिस, कम से कम सुनील शेट्टी ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि खड़ा हो. एक भी शख्स खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि शाहरुख खान खड़ा होना सिखाया नहीं उन्होंने, तो आज अकेले खड़े हुए हैं. बट पॉइंट ये है कि जो बोला वो तो आई सेड हिलेरियस इट इज. हाउ कैन यू से 23-year-old का किड होता है क्या? 23 साल का बच्चा होता है. Long time back, sir, there was this Karan Johar का शो जो होता है. I was just watching through the Facebook. Yeah, Coffee with Karan. तो वहाँ पे शाहरुख खान was there and Karan Johar said, "Who, according to you, is a superstar?" And with a full attitude, he threw away. One second. Someone is putting a message. Deepika Paul,
NCB officers are taking selfie with Aryan. Deepika, I think you have got it wrong. NCB ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिस शख्स को आप देख रहे हैं उस पिक्चर में आर्यन खान के साथ, वो एनसीबी का ऑफिसर नहीं है. एनसीबी मस्ट बी गिवन क्रेडिट. लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट अवे. हमको कहीं आकर किसी को कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो क्रेडिट भी देना आना चाहिए. आई थिंक समीर वानखेड़े ने जो काम किया है, वो अगर ऐसा काम नहीं करते तो ये भी बच के निकल गया होता. तो लेट्स गिव क्रेडिट टू द पीपल व्हेन इट इज ड्यू. सो अगर हम इस तरह की डाउट्स क्रिएट करेंगे विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, तो फिर क्या होगा कि कोई जो अच्छा काम कर रहा है ना, वो भी डिस्करेज हो जाएगा. यस तनु, प्लीज गो अहेड. यस सर. तो सर बड़े एटीट्यूड के साथ उसने अपना पेपर उठा के फेंका था एंड पीछे से डॉन बजा था, डॉन. And it was so disgusting. I said, what kind of an attitude this man has? And they've been bitten black and blue, both Gauri Khan and Shah Rukh Khan during the time of their marriage. One of my friends, she knows Gauri Khan, and she told me long time back. And I don't understand. Yes, it's very true, sir, कि एक 23 साल के बच्चे को, बच्चा तो नहीं बोलूंगी मैं सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक 23 साल का ही, 23-year-old, he's a man. he's a man, he is major, वो माइनर नहीं है वो. No, he's an adult. हाँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सर, वही मैंने जो पहले भी कहा था कि कैंपेनिंग है सर, एंड ये अपने ड्रग्स वगैरह के लिए चक्करों में ये अपना पैसा लगाते हैं, एंड दे, इट्स ऑल अ गेम ऑफ कैंपेनिंग. सवाल बहुत सिंपल है, सवाल बहुत सिंपल है तनु, कि आर्यन खान के पास ड्रग्स आया कहां से. बहुत सिंपल सा सवाल है. यानी ये सवाल तो कोई भी पूछेगा कि ये मान ही नहीं सकता कि एक बच्चा है ना, बच्चा है, उसके पास तो 23 साल के बच्चे के पास ड्रग्स कहां से आते. कोई तो सप्लाई कर रहा था, कोई तो सप्लाई कर रहा है. डेफिनेटली सर. ये शाहरुख खान को नहीं मालूम होगा कि उनके बेटे तक ड्रग्स कौन पहुंचा रहा है. गायब क्यों हो गया सर? इसीलिए तो गायब हो गया. Where is शाहरुख खान? गायब है सर, गायब है. ये बच्चे आजकल के दे आर यू नो अपने फादर्स के, अपने पेरेंट्स के नाम पे दे आर यू नो अ ब्लैक मार्क ऑन देयर फेस. मैं I seriously, it's not just about Aryan Khan. There are n number of मतलब बहुत सारे बच्चे हैं. ने एक इंटरव्यू में कहा that I would want my son to do everything that I have not done, and he specifically mentioned what all. One of the things was drugs. Today, so he has made his parents proud. Seriously. I mean, it is a very shocking news, sir. It is a very shocking news. Yes, Manny, please go ahead. Yeah, hello, Manny ma'am. Hi, good evening. Anu, just stay on. Yeah. So for me, nothing is shocking. मैं तो बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि you know, in Bollywood, drugs is served like ruafza, you know, Tang, and like cold drinks. And I've said this a lot many times. Now, I'm not surprised because even before Sushant Singh's incident had happened, there was a video that had gone viral when Aryan Khan, Chunky Pandey's nephew, ये सब friends हैं, you know, all these three girls. Anaya, her name is Anaya. No, her name is Anaya, but her cousin brother, first cousin, जो साथ में ही रहते हैं ना. Okay. Yeah. So he's also quite prominently seen. He's been seen partying with Surat Pancholi, Imtiaz Khatri. मतलब ये सारा जो group है, Sohail Khan's son, ये सब कट्ठे party करते हैं. And I've seen their pictures a lot many times. And when they were studying in school, there was this video that had got viral with all these youngsters. You know, they were passing on the cigarette around. So मैंने उसी time पे I had an idea that, you know, something is going on. The interview that you're talking about, in which Shah Rukh Khan and Gauri Khan were interviewed by Simi Garewal in 1997. Correct. When Shah Rukh Khan... Rendezvous. Yes, when the son was around 2 years, some months, and he was saying, I want my son to do everything, all these things. Now, you know, I relate this to what Riya Chakrabarti's video as well. That these people, when they are telling you, believe them. You think Shah Rukh Khan doesn't know his son does drugs? Of course he knows. In order to survive in Bollywood, they all need to be part of the syndicate. Now, what is Shah Rukh Khan's journey?
Shah Rukh Khan was an idol for Sushant Singh Rajput. He idolized him like nobody's business. Correct. Their journeys are so similar. They are from Delhi engineering college, though Shah Rukh Khan was not engineering college, but Barry Don का जो theater है वहाँ पे उसने क्या, he followed Shah Rukh Khan's path to be where then he became a TV actor and he idolized him so much. He even lost his mother quite early, and so had Shah Rukh Khan. So their journeys are very, very similar. And I know that somewhere down the line, Sushant was very disappointed by Shah Rukh Khan, the person. You know, when he got to know how people are in Bollywood, his ideal fell down. And I've seen him not directly mention about specific names, but he's mentioned about people whom he used to idolize, and he doesn't do that anymore. So the whole point is, in order to survive, they all have become part of this culture. Now, drugs is not just these star kids. Even in Delhi and all, in schools and all, you find drugs. It's become such a big issue. But it's sad when the stars or people whom common man looks up to, their families and their children are involved, because then they are actually. मैंने एक चीज बताई ना मुझे, ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि शाहरुख खान को पता ही नहीं कि आर्यन खान क्या कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल? So that's what I'm saying. He said it na in 1997. उसने बोला I want my son to do everything. How does he not know? मैंने बताया ना कि इस वीडियो में साफ कहा कि जो मैंने नहीं किया, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा वो करे. और उसमें सब कुछ बोला है. उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वुमनाइजिंग करना चाहिए, उसको सब कुछ करना चाहिए, including drugs. Yes, what I have not done, he should do it. Now this has come true. Now what I want to also say, another thing is, and I've always said it, is that when Sushant Singh Rajput's incident has happened, nobody spoke anything. And at that time, Sunil Shetty did speak in favor of Sushant Singh Rajput, and I want to give him that credit. He said that Sushant Singh is a genius, and I didn't know the side of Sushant Singh, and he was a great actor and all that. And at that time also, Sunil Shetty had spoken. I said that. I said that. कि कुछ लोगों ने आकर सुशांत की तारीफ की एज एन एक्टर. Yes. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सुशांत जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन चल रहा था, उसको उनके कॉलीग ने आके क्यों नहीं लीड किया? एक बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग क्यों लीड कर रहे थे? They should have led it. So that is what I'm saying. That मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ. आपको याद होगा जब हम बॉलीवुड एक्टर्स का रिएक्शन भी बोल रहे थे, तो मैंने बोला था, शाहरुख खान ने बोला था कि he loved me so much. Instead of appreciating Sushant, he started saying that he loved me, not what the industry had lost. Now you will understand the pain one goes through when one loses one's son. Pain you go through when your own son is in trouble. Gauri Khan can't sleep. What about Sushant and his family? Absolutely. You know these kind of things exist. The whole of Bollywood knows these kind of things exist. The least you can do is give him recognition, if nothing else. We are not asking you to come and speak about whether it was a suicide or a murder. At least give him recognition. No. They must come and speak about whether it's a suicide or murder. No consolation prize required. We don't want any consolation prize. It's a very simple thing. आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा है ना, मैंने उसका रीजन नहीं है आप खड़े नहीं थे, और आप आज भी खड़े नहीं हो. आप क्या शाहरुख खान को खर्च कितना रुपया लगेगा? 0.0001% खर्च करेंगे ना तो पटना पहुंच जाएंगे. उनको नहीं मालूम कि सुशांत की फैमिली कहाँ रहती है? Has he even bothered to go and check whether his father is alive or is dead? Especially when he's had a similar journey. Now, what is Shah Rukh Khan's journey? So someone is idealizing you, someone considers you as God, और आप उसका स्टेज पे मखौल उड़ाते हैं. So not only that. Now look at Shah Rukh Khan's journey. Now, why did Shah Rukh Khan became famous? For this reason, his father was, he's consistently said, his father was part of freedom fighting. When India ka independence ke liye ladai ho rahi thi, he said my father was a freedom fighter. So in one generation only, Shah Rukh Khan has finished. His son today has been launched as a druggie rather than as an actor. What have you done to your generation? आप कितना पैसे के पीछे भागते हो? क्या आपने एक जनरेशन में ही पूरा अपना नाम खराब कर दिया है? He is today, what is Aryan Khan's launch? ये सिंपल नहीं है. मेरे मुताबिक ना, आप जैसा करते हो ना वैसे ही भरते हो. Yes. आपने जितना एक साल में किया है ना, वो घूम के आ रहा है आपके पास. आपकी गलती नहीं है. Yes. ये पब्लिक की जो हाई है ना, पब्लिक की हाई लगती है, और पब्लिक तो करोड़ों में. Yes. करोड़ों में. दिल्ली, इंडिया में, बाहर, Yes. सब चिल्ला रहे हैं, और आपको लगा कि मजाक हो रहा है, तो लोग. Answer, the thing is, the most interesting thing is that what is the kind of crowd Aryan Khan and these people are roaming around in?
दे आर अगेन इम्तियाज खत्री, सूरज पंचोली, सब घूम घुमा के वही क्राउड में आते हैं और आप पिक्चर्स देख सकते हो. इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी. यू कैन गूगल दीज पीपल एंड सी द पिक्चर्स विद देम. इट्स द सेम क्राउड whom we are thinking are involved. It's the same crowd. And there was something else also I want to say is that no, I've forgotten. Okay, just stay on. Yes, Megha, I will reconnect you. Don't worry, just stay on. Hello, sir. Yes, Hello, Megha, please go everyone. ahead. Yeah. Sir, on continue to that point, I'm so shocked that when I was seeing their pictures on news, कोई गिल्टी नहीं है उनकी आईज में. मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि यू नो दे हैव सम गिल्ट कि हमने कुछ गलती की है. I'm so shocked. ये पहली बार थोड़ी हुआ होगा, इस वक्त पकड़े गए. राइट सर. एक सुनील शेट्टी ने जो पॉइंट रेज किया उसमें मुझे बोलना, अगर इनकी मूवी रिलीज हो रही होती है देन दे वांट न्यूज चैनल एंड एवरीवन टू नो कमेंट, सेंड देम ट्विटर्स पे ट्वीट करो, तब तो चलेगा. और जब कुछ गलती हो जाए तो गिव देम अ ब्रीदर. मतलब अपने लिए अच्छा हो तो ट्वीट करो. यू नो अगर आर्यन खान अभी कोई मूवी आ रही होती है और लॉन्च हो रहा होता तो एवरी सब पीआर टॉप पे होते, हर जगह ट्वीट्स हो रहे होते, देन दे आर फाइन. नाउ देन दे हैव डन सम मिस्टेक एंड न्यूज़ आर देयर, सो गिव देम अ ब्रीथर. सो देन वो किड हो जाते हैं. क्या हुआ मैं बताता हूँ. जब ये मेगा खबर आई ना तो 2-3 घंटे तक तो क्वेश्चनिंग. आज सुबह एक न्यूज फ्लोट कराई, वो उसमें कहा गया कि नहीं ही इज नॉट डिटेन्ड, ही इज नॉट इवन अरेस्टेड. उसको तो सिर्फ जो कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए रखा है एंड ही इज कोऑपरेटिंग, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेकर उसको छोड़ देंगे. अरे भाई, आपने क्या सोचा था कि एनसीपी मैनेज हो जाएगी? हर बार नहीं होगा ना. लग तो रहा था. नहीं मेगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, 10 बार होगा, हर बार नहीं होगा. अंधेर नगरी नहीं है. समीर वानखेड़े जैसा भी कोई खड़ा होगा तो दुनिया गया इधर से उधर. आप एनसीपी चीफ को सुनिए, बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है. जी, मैंने सुना. ऐसे भी लोग हेलो नीना मैम. 2 न्यूज आ रही थी. पहले तो बोला था कि ही कंज्यूम्ड एंड प्रोक्योरमेंट एज वेल, और लेटर ऑन अभी आ रहा है कि ही एग्री दैट ही ओनली कंज्यूम्ड. कंज्यूम वाला शायद अवेलेबल. नो, जो फाइल किया गया है एफआईआर उसमें कंजम्पशन, पोजेशन और डीलिंग तीनों चीजें. ओके, तो मैं वही क्लैरिफाई करना चाहता हूं. एब्सोल्युटली तीनों चीजें, बिकॉज़ वो फिर बेलेबल ऑफेंस हो जाता है. सो दे नो कि हमें कब क्या बोलना है, नो, एंड कौन सा बेलेबल और कौन सा बेलेबल. तीनों में से कोई भी बेलेबल नहीं है. कोई भी बेलेबल नहीं. ठीक है, that's my only point. And one more thing, sir, I just want deep trouble, let's admit that. And I just want to request everyone कि please don't keep yourself blind and follow everyone. अभी तक इन किड्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए हम इनको फॉलो करें. ठीक है, शाहरुख खान ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, अपने हार्डवर्क किया होगा, जो भी बॉलीवुड में चलता है वो बैकग्राउंड में चलता होगा, बट इन किड्स ने अभी कुछ भी नहीं किया. सो प्लीज फॉलो जिसने कुछ किया अपनी लाइफ में. फॉलो नीरज चोपड़ा एटलीस्ट, बट नॉट दीज किड्स. उन्होंने कुछ भी नहीं किया. दे आर जस्ट रिच एंड दे आर, यू नो. एक चीज देखो ना मेघा, बेटा एनसीपी के चक्कर लगा रहा है लेकिन शाहरुख खान सामने तक आने को तैयार नहीं. क्यों? व्हाई? बिकॉज ही इज स्कैर्ड कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीबी इन्हीं को रोक ले. और एनसीबी पक्का इनको क्वेश्चनिंग के लिए. ओके, शाहरुख खान का नाम बार बार आया है. ड्रग्स का जब भी जिक्र होता है बॉलीवुड का, लोग इंडिकेट कर देते हैं शाहरुख खान की तरफ. शाहरुख खान नोज दैट ही अल्टीमेटली, आप आर्यन खान तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आप शाहरुख खान तक पहुंच रहे हैं. दैट्स व्हाट इट मींस. इनको पता होता है, जितने भी है सबको सब पता है. बस जब ब्लाइंड बनना है वो ब्लाइंड बन जाते हैं. सब अच्छी चीजें तो पब्लिक को फॉलो करनी है ना. सब आइडियलाइज सारी अच्छी चीजें पब्लिक के लिए है. ये लोग कुछ फॉलो नहीं करेंगे. पब्लिक, हम आम जनता सब कुछ फॉलो करे. नहीं तो आज एक भी पब्लिक आपके लिए एक भी वर्ड लिखने को तैयार नहीं. सर अच्छी बात है, लोगों की आंखें खुली है. कर रहे हैं, आप बोलेंगे पब्लिक ट्रोल कर रही है मुझे. I was being so heavily trolled, you don't know. That is the story that will come after some time. There will be an interview and then they will be given opportunity to cry how the entire world were after us. We were struggling. We were going through the worst period of our life and we have seen what struggle is. This is our struggle. अरे भैया ये आपका struggle है तो रिक्शे वाले का struggle क्या होगा? वही तो. मतलब हम लोग ज्यादा इनसे हार्डवर्क करते हैं कंपेरेटिवली.
और ये लोग कुछ नहीं कर दे, अच्छे अच्छे कपड़े मेकअप पहन ले, तो मतलब सभी मतलब यंगस्टर्स हैव टू थिंक whom they have to follow. And this is my Absolutely. request. Please Correct. see and think whom you need to follow. Just stay on. Okay, Just thank stay you. on, Megha. Yeah. Yes, yes. Nina, just please go ahead. Just, Hello, sir. yeah, Nina. Please. Sir, I have very mixed feelings and reactions to this incident. Yes, I am happy that I'm not happy कि बेचारा आर्यन पकड़ा गया, but I am happy कि बॉलीवुड की पोलें खुल रही हैं. But I am really surprised कि how आर्यन alone, उसका तो एक गैंग होता है, उन लोग का तो पूरा जो बॉलीवुड के बच्चे वो एक साथ पार्टी करते हैं. ये क्रूज में सिर्फ आर्यन और वो एक some merchant guy was there. और बाकी कोई ऐसा किसी कोई के बच्चे नहीं आए हैं, हालांकि नॉर्मली दे ऑल गो टुगेदर, सो दिस इज सरप्राइजिंग. नंबर 2, आई डोंट नो. Yes, it is surprising, no doubt. यस, इट इज सरप्राइजिंग नॉर्मली, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस उन लोग की देखी है जिसमें सोहेल खान का बेटा, अक्षय का बेटा, वो 2-3 जो लड़कियां हैं, वो चंकी पांडे की बेटी है या जो भी है, वो सब एक साथ उन लोग पार्टी करते हैं. और एक वीडियो इस तरह की आई भी थी बीच में कि उन लोग क्लब में से एकदम ड्रग्ड है और एकदम वो एक इंटॉक्सिकेटेड है. क्लब पे रेड हुआ था और इन लोगों को वहां से जल्दी जल्दी भागना पड़ा था. एक साथ गाड़ी में एक दूसरे की गोद में चढ़कर बैठकर उन लोग जा रहे थे. तो नॉर्मली हमने देखा है कि इन लोग One second. 1 minute. Tanu, there seems to be some problem. They got stuck. 1 minute. Yes, Tanu, boliye. So one last point I wanted to make was that it's not just about Aryan Khan. It's not just about. I've seen Akshay Kumar hiding his boy, his child from a rave party, and these rave parties. उसी का जिक्र कर रहे हैं. Mm-hmm. And Akshay Kumar, such a fit man, and his son turning into this. I mean, I don't know what is going wrong with the generation coming up, sir. I'm so worried. My daughter is 10 years, 11 years old. After some time, she'll be going out for some engineering or some medical practices ये and तो all. individual पे depend करता है. Largely, individual has to take care of himself or herself. You need. ये सिखाया नहीं जा सकता. और इसको आप कब तक स्पून फीडिंग कराते हो, वो तो पॉसिबल नहीं. Exactly, it is the willpower, sir. It is the willpower that we have to have in us. Correct. Right, sir. Thank you, sir. Okay. Yeah, man. Please go ahead. 1 minute. 1 minute, man. Please go ahead, man. Yeah. What I'm coming to you, just stay on. Yes. So now so what I wanted to talk to you was that, you know, because of this case, like you were saying, how Sushant Singh Rajput's case, we need to refer back to it, is because things are becoming clearer now, because there is a pattern that is coming up. Biggest pattern is Mr. Satish Maneshande. मतलब अब तो मुझे बिलीव हो ही गया, जो गलत है ना उसको मिस्टर सतीश मानेशंडे डिफेंड. He's a lawyer, he's a professional. Yes, but he defends the people who are guilty. Now, मतलब as far as my perception is concerned, that's वो तो राम जेठमलानी ने पूरी जिंदगी किया. Yeah, so exactly. So at least that is becoming clearer. It is becoming clearer. It reinforces. He has specialized as a defense lawyer. Yes. So, sir, another thing I wanted to talk to you, of course, which you always mention, is poetic justice, and I call it law of karma. That हम सब the same thing. Yeah. So हम सब बोलते हैं कि you know सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ हो नहीं रहा है, और मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि you just wait and watch. धीरे धीरे अपने आप ही चीजें, जो भी जिन लोगों ने सुशांत को शायद तंग किया है, या they have troubled him or they have, you know, caused unpleasantness in his life, they're all getting punished, starting with Paramveer to Anil Deshmukh. आज उन लोगों का क्या हाल हुआ है, और ये रिया चक्रवर्ती के साथ भी होगा. सिद्धार्थ पटानी तो ऑलरेडी जेल में है, और भी लोगों के साथ होता रहेगा. हमको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, and we should stay united and carry on this movement. Now, another thing I wanted to talk to you about was that Sushant Singh Rajput's Chichore, which was released in September, it was a budget of 53 crore and it earned 150 crore in 1 month only. So just imagine somebody who's getting these kind of numbers. 100 तो मुझे नहीं कि जब ये बात सही है कि भाई आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर है
तो ऐसा कैसे हो गया कि सुशांत के पास उसके बाद सिर्फ एक फिल्म थी? ऐसा कैसे हो? सर सुशांत के और रिया पास चक्रवर्ती का रिकमेंडेशन चाहिए था टू गेट अ रूमी जाफरी मूवी, और कैसी फिल्म बनी है वो तो देख ही लिया सब लोगों ने. And so Sushant, yes, and Sushant in his interviews has said very, very clearly that he does not sign movies. Every airy movie he does not sign. He needs to feel challenged with the script, only then he signs a movie. तो वो क्यों sign करेगा रूमी जाफरी के साथ कोई भी movie या रिया चक्रवर्ती के साथ कोई भी movie? Because he was very, very professional as far as his career was concerned and his choice of movies was concerned. And that lady who had come, Megha, she said very clearly that you need to stop following people who are not a role model for your own children. Correct. Sushant itself can only teach you so many things in so many different subjects. अब अगर आर्यन खान बॉलीवुड के जेन नेक्स्ट है तो फिर भगवान बचाए इस बॉलीवुड से. सर बॉलीवुड रहेगा ही नहीं. बॉलीवुड इज ऑन इट्स वे टू डिस्ट्रक्शन. जो जिसको बोलते रहो. I wish Bollywood stays with right people. No, film industry should stay, na. Film industry needs to stay, not Bollywood. I'm sorry. No, I mean, there is I a difference. don't care about the name. There's nothing called Bollywood. Yes. It is just a symbolic name, but basically we mean Indian film industry, Hindi film industry. Yes. So Hindi film industry का रहना चाहिए, लेकिन correct लोगों के साथ. So the thing जब is तक that सर शाहरुख ये गंदे खान लोग हटेंगे नहीं तब तक Yes. फिल्म इंडस्ट्री नहीं रहेगी. जब तक शाहरुख खान सलमान खान ये जो जनरेशन है ना, उन्होंने बीच वाले एक्टर्स को तो ग्रो करना ही नहीं. आमिर खान का नाम लेते थे रुक जाती है. हाँ, क्योंकि मैं उससे इतना ज्यादा नहीं मैं मानती हूँ. I see is better than others. एक मिनट, वाह one second. I don't watch movies. अपना परसेप्शन होता है सबका. वो हो सकता है. हाँ. लेकिन वो नहीं चलेगा. आप गलत है तो फिर सब गलत है, नहीं गलत है पिक करना है तो फिर पिक एंड चूज में तो कुछ nobody is watching नहीं हो जाए. nobody is watching movies. As people we can decide. अरे नीना मैम एक ही बताइए, आपका बॉलीवुड बॉयकॉट का कॉल है, सब लोगों का है, राइट? तो आप ये नहीं देखते हो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म को हिट करा रहे हो, लेकिन ये नहीं देखते उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शंस है. तो फिर किसकी फिल्म हिट करा रहे हो, किसको समझा रहे हो ये चीजें? लेट्स नॉट मेरा कॉन्सेप्ट है कि Nina, just let me just finish. I'll just finish this. The thing is, what I'm saying is that all these Khans, Akshay Kumar, Ajay Devgans, उन्होंने एक बीच में 20 years की पूरी जनरेशन ही खा गए हैं वो, जिसमें you know जो 40s और 30s के जो एक्टर्स हैं उनको तो आने ही नहीं ना दिया, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए गद्दी बचा के रख रहे थे. अब बच्चे सारे ड्रग ही निकल रहे हैं तो कैसे बचेगा ये? They ultimately have to go. बाहर वाले आएंगे ना, बाहर वाले आएंगे. वही मैं कह रही हूँ ना, आने देंगे. वही तो मैं कह रही हूँ ना कि उनके बच्चों को कोई परवाह नहीं है, वो सब ड्रग्स में डाले हुए हैं, तो उनकी जिनके लिए वो गद्दी बचा के रख रहे थे वही निकम्मे निकल रहे हैं. तो किसके लिए वो अब जो बाहर वाले आएंगे वो जाके लखनऊ में फिल्मों में काम करेंगे, साउथ में काम करेंगे, मध्य प्रदेश में काम करेंगे, बॉम्बे नहीं जाएंगे. खत्म कहानी. एग्जैक्टली. So what I'm saying is कि उनको अब ये बात समझ लेनी चाहिए. ये मोनोपोली खत्म, मुंबई बॉलीवुड की मोनोपोली खत्म. Yes, exactly. Perfect. Yes, Nina ma'am, go ahead. So I endorse your one point. The fact is कि इस इंडस्ट्री को अगर सुधरना है ना तो होलसेल में बदलना पड़ेगा. Yes. ये फुटकर में बदलने से नहीं बदलने वाली. और अगर ये फ्यूचर है ना इंडस्ट्री की, आर्यन खान एंड सिमिलर पीपल, तो भैया माशाल्लाह है, भगवान बचाए इन लोगों से. सब इंडस्ट्री में सुधरने वाली है. उनमें वो ड्राइव ही नहीं है, क्योंकि वो सारा जो पेरेंट्स जो बाहर से आए हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये वो एंड ऑल दैट, उनमें अलग किस्म की ड्राइव थी. वो ड्राइव तो इतना है, अरे क्या बात कर रही है. ड्राइव की बात तो बिल्कुल मत कीजिए. ड्राइव तो इतना है कि घर से ड्रग्स लेकर कुछ आप वहां पहुंच गए क्रूज में, और आप बोल रहे हैं कि ड्राइव नहीं है. नो फादर लोग ने हिम्मत नहीं की कभी. और किस्म की ड्राइव की कह रही हूँ मैं, एम्बिशन की बात कर रही हूँ. इन बच्चों में एम्बिशन नहीं है. आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि एक आदमी को गट्स चाहिए. आपको घर से ड्रग्स लेकर क्रूज तक पहुंच जाने के लिए आपके पास गट्स चाहिए, और वो तब होगा जब आप बार-बार ऐसा कर रहे हो. पहली बार में नहीं होगा. And you are getting support from your parents. आपको डर नहीं है अपने पेरेंट्स का. उनको बैकिंग है, उनके पास बैकिंग है पेरेंट्स के पैसे की, उन लोग को डर नहीं है. और ड्राइव जो बात कर रहे हैं शाहरुख, सलमान जो भी थे, उन लोग का जनरेशन इसके लिए मतलब अपने आप को आगे ले आया बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था उस वक्त.
पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने काफी पापड़ बेले और अपने आप को इतना स्ट्रांग किया, लेकिन आज उनके बच्चों के पास इतना अनलिमिटेड पैसा हो गया है ना कि इन लोग उस हर बुरे काम में घुस रहे हैं, और पेरेंट्स लोग के पास टाइम नहीं है उनको देखने का कि वो देखेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और मैं भी जानते हुए भी उन लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे कि आर्यन के ये कर रहा था, क्या शाहरुख को नहीं पता था, क्या उसकी वाइफ गौरी को नहीं पता था, उसकी मदर को नहीं पता था? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कई बार इंटॉक्सिकेटेड वीडियोस में देखा गया है, कई बार उसको पकड़ा गया है। तो क्या हम जब देख सकते तो पेरेंट्स ने नहीं देखा होगा? और दूसरी एक बात है कि आई डोंट नो, लेकिन ये भी मैंने न्यूज में पढ़ा था कि गौरी खुद भी तो कहीं बर्लिन के ना पता नहीं जर्मनी किसी एयरपोर्ट में मेरुआना के साथ पकड़ी गई थी। नो आइडिया, नो आइडिया। यस, गो थ्रू द न्यूज, यू विल गेट इट। बर्लिन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, शी वाज डिटेन्ड विद मेरुआना। सो इफ अगर माँ बाप इस तरह का यू नो पोर्ट्रे करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे वही सीखेंगे जो घर में देखते होंगे। आपने बचपन से बच्चों को इतनी छूट दे के रखी होगी, इतना पैसा सब दे दिया होगा, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो रॉन्ग रास्ते पे जाएगा ही। Agreed. I agree. And if this kind of people are coming as next Bollywood you know generation, I am very sorry to say, हम जो boycott Bollywood कर रहे हैं वो हमको continue रखना चाहिए, और इनके बच्चों को तो बिल्कुल भी, क्योंकि they are not going to be a good example for our coming generation. They are not going to set a good example. They themselves are bad examples. तो वो क्या example लेकर आएंगे? And 20 very घंटे sorry, लगे, आप सोचिए नीना मैम, 20 घंटे लगे एनसीबी को फाइनली अरेस्ट करने। 20 घंटे, 20 घंटे तक कितनी कोशिश की होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। Heads off to Sameer Wankhede and his team and NCB team. I really appreciate India की NCB team, but I am very sorry to say again कि इन लोग बेचारे इतने मुश्किलों से इन सबको पकड़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं बेल मिल जाती है। I wouldn't be surprised. Don't worry about the bail. I wouldn't be surprised कि Don't worry about the bail आर्यन को बेल मिल जाती। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सर इससे उनका जोर और बढ़ता है। नो बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ। ये उनका जोर आप और बेल बढ़ता को है, लेकर ना, बेल को लेकर मीना मैम बेल को लेकर आपको एक चीज प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, इमोशन से नहीं होगा ना। प्रैक्टिकली हमको समझना है कि देयर इज अ लीगल प्रोविजन और बेल इज अ लीगल प्रोविजन, और ये इमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए अगर आज कोई बहुत छोटी फैमिली का लड़का आर्यन की जगह होता, क्या उसको छोड़ दिया जाता? उसको तो जेल में सड़ा के मार दिया जाता। उसको तो जेल में सड़ा के मार दिया जाता कि उसके पास इतना कोकेन या जो भी ड्रग्स मिला। सर, मैंने अपने नरेशन में नरेशन में ही मैंने बोला कि अगर कोई आम आदमी पकड़ा होता ना तो उसको 2 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। इसको अरेस्ट करने में 20 घंटे लगे। हो सकता है कि किसी को बेल मिलने, इसको बेल मिलने में 2 दिन लगे, बिकॉज ही कैन अफोर्ड अ लॉयर लाइक सतीश मान शिंदे। बट एक कॉमन मैन का बच्चा अगर पकड़ा जाएगा तो उसके लिए सतीश मान शिंदे खड़े नहीं होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए एक कोई ऑर्डिनरी लॉयर ही खड़ा हो सकता है, क्योंकि उतने पैसे नहीं है उसके पास देने। नहीं, सपोज करें हमारी लेवल की कोई फैमिली का बच्चा हो, तो मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको लिख के देती हूँ, अगर हम अच्छे से अच्छा लॉयर। नो नीना मैम, दैट्स नॉट करेक्ट। यहाँ मिलेगा, आपको प्रोविजन है ना, मिलेगा बेल। आप डिनाई नहीं कर सकते। बेल इज अ रूल एंड नॉट एन एक्सेप्शन। बट ड्रग इज अनबेलेबल। मैं वही 1 मिनट 1 मिनट आप लोगों को ना नॉन बेलेबल और बेलेबल का डिफरेंस बता देता हूँ, और इसको मैं आखिरी बार बता दूं। बेलेबल वारंट वो होता है जिसमें बेल आप पुलिस स्टेशन के भीतर ले सकते, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। नॉन बेलेबल एनबीडब्ल्यू का मतलब ये नहीं कि आपको बेल नहीं मिलेगा। एनबीडब्ल्यू का मतलब होता है कि आपको बेल लेने के लिए बाकायदा कोर्ट जाना पड़े। जब तक कोर्ट नहीं देगी आपको बेल नहीं मिलेगा। आप पुलिस स्टेशन में बेल नहीं ले सकते। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के केस में मान लो किसी को चोट लग जाती है तो आपको बेल पुलिस स्टेशन से ही मिल जाएगा, आपको छोड़ देगा। ठीक है, अगर इसको बेल मिल गई, बेल तो मिल ही जाएगी फॉर श्योर। मिलनी है आज नहीं 10 दिन बाद मिल जाएगी। अच्छा, तो फिर क्या कुछ होगा इनका कुछ? अच्छा 1 मिनट, आंसर होगा। आंसर वही पुरानी हरकतों में चलेंगे, वही ठाट से चलेंगे। उनको कोई, आप रिया चक्रवर्ती को देख लीजिए, जेल में खर्च आ गई, क्या फर्क पड़ा उसको? लेट मी आंसर। बिग बॉस 5 लाख पर डे, बिग बॉस की उसको ऑफर आ रही है, मूवीज के लिए वो घूम रही है सब जगह।
सर नीना इन मैम, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. I mean, I feel एक really मिनट, waste of time. मुझे तो I लगता है. will answer. Listen to you. You have made your point. Let me answer. There is a glass, and glass has a water. Here's the glass, right? It has water. It has plain water. अब आप इसमें पानी खाली देखें या इतना देखें, मेरे हिसाब से आर्यन खान की बैंड बज गई है, शाहरुख खान की बैंड बज गई है, उनका बेटा 20 घंटे तक वहां बैठा रहा, उसके बाद अरेस्ट होकर आज कस्टडी में घूम रहा है ना. ये इमेजिन ही नहीं किया होगा उन्होंने. अगर मान लीजिए ये भी नहीं होता तो क्या होता है? आंसर दिस क्वेश्चन. अगर ये भी नहीं होता तो जो हो रहा है ना, लेट्स फर्स्ट हार्प ऑन दैट. ये सही हो रहा है और भी ऐसा होना चाहिए. अगर हम इस मोड में चले जाएंगे, और दूसरे लोग क्यों नहीं पकड़े हैं? मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर वो पूरा गैंग होता है एक साथ. तमन्नाओं का तो कोई अंत नहीं है. मैं तमन्ना तो ये चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि मैं ना महल में रहूंगी, उससे तो होगा नहीं ना. नहीं, हमको महल नहीं चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए. हमको जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए. दैट्स इट. ये 15 साल से जो तमाशा लगाया हुआ है 15 महीनों से है ना, ये बड़ा अभी बहुत अजीब सा लगता है. वो अजीब सी फीलिंग आती है कि किस तरह का हमारा सिस्टम है. वो फ्रस्ट्रेशन मैं अपने नरेशन में भी दिखाता हूँ, लेकिन पॉइंट है कि देयर आर समथिंग व्हिच आर लीगल प्रोविजंस व्हिच हैव टू बी केप्ट इन. वो हमको नहीं भूलना चाहिए, वो हम नहीं इग्नोर कर सकते. वरना क्या होगा मैं बताता हूँ. वरना ये होगा, जब कोई अर्नब गोस्वामी पकड़ा जाएगा ना तो उसको छोड़ेंगे नहीं ये लोग. आप समझिए इस बात, आप फ्लिप साइड समझिए. कल आपका कोई मैं समझ रही हूँ आपको नहीं छोड़ा जाएगा. हाँ, बेल अगर प्रोविजन नहीं होगा तो. मैं समझ रही हूँ. और इसी बात पे एक बात मुझे याद आई. आप देखिए ये वाजिद केस जो हुआ, बिकॉज उसमें मुकेश अंबानी इन्वॉल्व था, तो झटपट सब कुछ हो गया. इतने बड़े बड़े वो अनिल देशमुख जैसे भी आउट हो गए, बिकॉज वो मुकेश अंबानी का केस था. यहाँ सुशांत सिंह राजपूत शायद अंबानी जितना लेवल पे तो नहीं है ना. अगर बेल का प्रोविजन नहीं होता ना मैम, आपकी बात मैं मान लूं ना, 1 मिनट के लिए आपका आर्गुमेंट में एक्सेप्ट कर लूं ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कभी भी अर्नब गोस्वामी को निकलने नहीं देती. आप समझिए इस बात को. ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है. आपके फेवर का कोई आदमी, बीजेपी का सपोर्ट था उसको, उसके लिए वो निकल पाया. नो, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल. अगर इतना सपोर्ट था तो जाता ही नहीं ना जेल. अगर इतना ही सपोर्ट था तो वो तो उसको घसीट के ले जाएगा. ना, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ फ्रिवलेस आर्गुमेंट की बीजेपी का सपोर्ट था तो फिर जिसका कोई सपोर्ट नहीं तो सड़ता रहेगा जेल में, राइट? ऐसा नहीं होता. अभी वो मुंबई में है. 1 मिनट. हाँ है, एक मिनट बताओ. वो मुंबई में यस है. आपको नहीं मालूम, बहुत सारी चीज मुझे मालूम है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि निर्भया के जो चारों थे ना सस्पेक्ट, उससे ज्यादा बुरा हाल तो नहीं है ना. निर्भया के चारों सस्पेक्ट के अगेंस्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम के अगेंस्ट में चार्जेस बने थे. कोई एक आदमी उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं था. उन चारों को बेल मिला है. We can't just dismiss things like this. Otherwise, it will become a completely banana republic. We are not a banana republic. That is why there is a judiciary in this country. We are not पाकिस्तान की, वहां पर कुछ भी कर देंगे, तालिबान आएगा मार देगा किसी को. ये हिंदुस्तान है, हमारे कुछ नियम है, हम ऐसे ही चलेंगे. बेल मिलना हमारा कानूनन हक है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है. तो फिर वो निर्भया के लॉयर को भी मिलता है. वो जो जुडिशरी सिस्टम करेक्ट है जरूर उसको फॉलो करें, लेकिन जो गुनहगार है या जो कल्प्रिट है आप उनको भी पकड़े. आप उनको छोड़ क्यों देते हैं? वो अगर नहीं पकड़ा होता तो मिस्टर आर्यन खान आज इस वक्त स्क्रीन पे नहीं होते और हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे होते. यस रिंकू, प्लीज गो अहेड. Good evening, everybody. I hope I'm audible. Yeah, you are audible. Okay. नीना मैम का पहले जवाब दे दूं, फिर मैं अपनी बात रखूं. नीना मैम, देखिए आपका हम सबका एक कंसर्न होता है जब हम किसी ईमानदार व्यक्ति को हम जाते हुए देखते हैं जेल में, तो हमें लगता है कि वो क्यों जा रहा है और हमें उसको लगता है उसे जाना नहीं चाहिए. और कोई कल्प्रिट जो हमें लगता है और बहुत हद तक है भी, तो अगर वो जाता है और उसे बेल मिलती है तो हमारा दिल कहता है कि बाहर आएगा तो बहुत सारी चीजों को. बट कानून जो है उसकी एक कानून जो है वो देश जो है संविधान से चलता है और संविधान सबके लिए बराबर है. और जो बेल की प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि केस जब कोर्ट में जो बेलेबल चीजें जाती हैं तो उसमें वो कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई जो केस है वो अगर कंटिन्यू करने में
अगर वो Let's not get into this. People will lose interest if we discuss. Okay. We are not interested. Okay, no. Let's get back to this Aryan Khan. आर्यन खान, Aryan Khan is under touch. Sir, आज की देखिए, बात उनको देखिए इनकी सर, बात करनी पड़ी है. Let's focus on that. यस 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 सर, ये जब हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप तो 15 महीने से बातें कर रहे हैं और हम भी कुछ महीनों से, कुछ 8-7 कितने, आज 9th मंथ है ना, 15 महीने से 10th आप भी बात कर रहे हैं. बोलिए ना. 15 हाँ, महीने मैं 10 महीने से तो मैं लगातार बात कर रही हूँ, और मैं 5 महीने तक आपके प्लेटफॉर्म पे जुड़ी नहीं थी, सिर्फ एक मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाती थी, मुझे आता ही नहीं था कनेक्ट करना, बट यू नो आई लकीली वन डे आई डिड इट ऑन दैट सुशांत बर्थडे. तो बोलिए. हाँ सर, देखिए, पहली बात तो है कि सुपरस्टार का बच्चा होना भी कितना मायने रखता है, कितनी अच्छी एंट्री मिल जाती है. वो पूरे प्राइम न्यूज है रात को, कल 10:30 बजे से जो फ्लैश हुआ है सोशल मीडिया पे और टीवी पे, और वो अभी तक चल रहा है, और पता नहीं कहाँ तक चल रहा होगा. और गौरी खान और शाहरुख खान की तो बात ही जुदा कर देते हैं हम. लेकिन मुद्दा ये नहीं है. मुद्दा ये है कि मैं इस बात पे विश्वास रखती हूँ, और हम सबको विश्वास है कि ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, उसी तरह से कर्ज में भी बहुत ताकत होती है, किसी की बद्दुआओं में भी बहुत ताकत होती है. आपने 15 महीने से सिर्फ बद्दुआ ही ली है, और एक की नहीं ली है, एक परिवार की नहीं ली है, करोड़ों लोगों की ली है, अरबों लोगों की ली है. बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाते, या किसी सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हुए होते हैं. मैं बूढ़ी औरतों से भी मैंने बात की है, जिन्होंने सिर्फ घर में खबरें सुनी हैं, उन्हें भी दुख है, चाहे वो सुशांत सिंह के जाने का हो, चाहे हमारे आज के स्टार सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का हो. सबको कहीं ना कहीं इसको सस्पिशियस दिखता है, और वो दर्द है. और हर आदमी जस्टिस के लिए वो वैसा प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन दुआ देता है, बद्दुआ देता है, और इस बद्दुआ का असर है. उसके अलावा हम सभी ये कहते हैं कि सुशांत इज अ गॉड्स चाइल्ड. उसको मारा गया था, बहुत बुरी तरह से मारा गया होगा. उस समय उस व्यक्ति ने जरूर प्रार्थना की होगी कि मेरा ऐसा क्या गुनाह था, मैंने ऐसा क्या किया. उसको पहले ड्रग ट्रैप में अगर लिया गया था तो भी वो तड़पा होगा. जब भी वो होश में आता होगा तो सोचता होगा मैं कहाँ था, क्या हो गया मेरे साथ. तभी तो वो कहता था कि मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा. तो उस तड़प का भी ये असर है. शाहरुख खान जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज इस तड़प से, जिनके बच्चे ड्रग्स में चले गए, वो आज उनकी नींदें हराम हुई होंगी, और वो बहुत जरूरी है. सर आज की तारीख में आप अभी कोई प्लेटफॉर्म पे तनुज बोल रही थी कि मेरी बेटी 10 साल की है, और मुझे बाहर भेजने में, सोचने में डर लगता है कि मेरी बच्ची इंजीनियर. मेरा बेटा 19 ईयर्स का हो गया सर. मुझे मालूम है, व्हेन माय सन टॉक्स अबाउट हिज कॉलेज, he says every child is taking drugs there, every child is taking drugs. And what you were saying कि अपनी जो है क्या कहते हैं, अगर विल पावर स्ट्रांग हो, सर ऐसा नहीं होता है. when you live in Rome, you have to be like Romans. आज की तारीख में शराब इतनी एक्सेप्टेड हो गई है, इतनी लाइफ में एक्सेप्टेड हो गई है कि आजकल औरतें भी इसको लेकर के अपने आप को एक क्लास बोलती हैं. अगर आप वहां नहीं शराब पीते हैं तो आप वहां पे डिग्रेड होते हैं. अरे ये बड़े 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 पुराने विचारों के लोग लगता है. अगर आदमी नहीं पीता तो उसकी तो बात जाने दीजिए, अब और तो आ गया, और बच्चों पे ये आ रहा है ड्रग्स, और ड्रग्स को इन लोगों ने इतना ज्यादा हाइप किया. तो मुझे लगता है इस केस को सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान को पकड़ना है या ड्रग्स नेट को पकड़ना है, इसलिए नहीं. ये इस केस को स्पेशली बहुत फोकस करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले इट्स नॉट कूल. Cool is when you become It is not cool, because I will tell you, जब तक आप बच के रहते हैं ना बहुत कूल है. जब पकड़े जाते हैं तो आर्यन खान की तरफ पसीने छूटते हैं. जब आपको एनसीबी वाले खींच के ले आते हैं ना, तो वो रोने की शक्ल बनती है, जो आर्यन खान की शक्ल दिख रही है. मैं उससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है. कूल इज समीर वानखेड़े, who is being appreciated. Absolutely. Yes, Absolutely. he is a superstar. He is superstar. Correct. Where is Shah Rukh Khan? He is a hell. Who smokes, who speaks very foul language in Wankhede, where he has been banned for lifelong, and he is in all the wrong things, and he is giving a statement. मेरा बेटा बड़ा होगा तो 5 साल के बाद लड़कियों के पास जाएगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा. And now you are, जो कहते हैं ना जी पे सरस्वती बैठती, अब आप काटो, जो बोया है वो काटो ना, वो काटना ही पड़ेगा. उससे आप बच नहीं सकते हैं. Okay, just John. Rinku, I will come back on to you. Just John. Yes. हाँ सर, पहली बात है सर, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप बोलते रहते हैं ना पोएटिक जस्टिस, तो सुशांत सबसे बड़ा फैन था शाहरुख खान का,
और शाहरुख खान, और एक वक्त था जो सुशांत को ड्रगी बोला गया था, और आज सबसे मजे की बात यह है कि आज उसी शाहरुख खान का बेटा ड्रग केस में अंदर गया है। तो ये हमारे लिए पहली जीत है, मेरे लिए तो बहुत हम सबके लिए पहली जीत है। हम जितने सारे लोग सुशांत से प्यार करते हैं सबके लिए पहली जीत है। अब वो कितने दिन अंदर रहेगा, कितने दिन बाहर रहेगा, ये हम लोग सोच के कुछ कर नहीं सकते। दे आर वेरी बिग फिश एंड हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग इज दैट सर, आपने एक पॉइंट बोला है कि 23 साल का बच्चा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 23 साल में कौन बच्चा होता है सर, और वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई नहीं होता है यहाँ पे तो। और मुझे जहां तक याद है शाहरुख खान के, जाइए बिनी नेट पे जाइए और ढूंढिए, सबके कारनामे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन बच्चा है और कौन कच्चा है। शाहरुख खान का बेटी को लेकर भी बीच में कुछ बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। Let's not discuss. Yeah, exactly. So सर, जो मुझे लगा कि ये जो हो रहा है ना सर, ये शायद हम लोगों की बददुआई है। मुझे केस को लेकर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि केस तो है, ड्रग केस पे गया है, सतीश मनसिंह आ गया है फिर से वापस। ये तो वही केस है, सुशांत सिंह राजपूत वाला। मुझे वही लगता है, ये वही है, मतलब उसी का चेन चल रहा है, एक के बाद एक इसी का चेन चल रहा है। तो मेरे अच्छा एक चीज मैं भूल गई थी इतने सारे पॉइंट में सर। करण जौहर का एक वीडियो देखा मैंने अचानक से, फेसबुक में आया, बेचारा बहुत रो रहा था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, जैसे लग रहा था कि उसका अपना बच्चा चला गया। तो मैं सोच रही थी कि भाई तुम्हारा आंसू उस वक्त कहा था, वो भी तो एक बच्चा ही था ना। अगर तुम्हारे फिल्म में काम किया था उस टाइम, तो तुम्हारे आंख में एक आंसू तो छोड़ ही दो, एक कॉन्डोलेंस भी तुमने नहीं दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ऐसे बोल रहा था जैसे उसका अपना कोई चला गया है। तो लेकिन और दूसरा चीज है, करण जौहर भी आज शाहरुख खान के बारे में कुछ नहीं बोल, मतलब शाहरुख खान के पास में खड़ा नहीं हो सकता है, खुद ही तो ड्रग केस में फंसा हुआ है वो वीडियो को लेकर। चाहे क्लीन चिट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोगों को दिख रहा है कि क्लीन चिट मिला है, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ अंदर का धो के रख दिया है। सही है, एक्चुअली तो अंदर का कुछ है जो करण जौहर को भी पता है कि मैंने कितना पैसा ठूसा है तब जाके मुझे क्लीन चिट मिला है, और कितना पैसा अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कितना मेरे ऊपर आएगा। तो आज करण जौहर जो सबसे क्लोज फ्रेंड है शाहरुख खान का, वो भी नहीं बोल सकता बेचारा। उसने हाँ फ्रेंड है क्या? हाँ बहुत क्लोज है, जहां तक मीडिया में आता है। फ्रेंड होता तो अभी खड़ा होता ना सर। कैसे खड़ा होगा? अगर करण जौहर आज खड़ा होगा तो हम लोग फिर से उसको धोने नहीं लगेंगे सर। हम लोग तो है ना हम लोग तो है ना, हम तो बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हो भाई, आप लोगों के वहां पे तो बड़े बड़े लोगों का पार्टी होता है, आप लोग तो वो टलकम पाउडर डाल के ऐसे सूख के बोलते हो, ये तो पाउडर था, ये तो ड्रग था ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, हम लोगों को भी समझ में आता है कि जैसे भारती सिंह कैसे छूट गया, भारती सिंह का भी तो छूट गया है ना, पैसा ठूसना पड़ता है, यह भी ठूसेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज देश हमारे मतलब बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन जिसके नाम से किंग खान, मतलब बॉलीवुड का किंग, उसका बच्चा जेल में है बेचारा। और ये जो धब्बा लगा है ना, और सबसे बड़ी बात सर, करण जौहर एक्चुअली आर्यन खान को ये करने वाला था, क्या कहते हैं, लॉन्च करने वाला था, लेकिन एनसीबी ने पहले ही कर दिया। ये बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, सारा लॉन्च हो गया, ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और जैसे मैं सबका नाम भूल जाती हूँ सर, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ शाहरुख खान का बेटा ही है, बहुत सारे लोग और भी है, शायद धीरे धीरे नाम आएगा, चांस आएगी, मैं बोलूंगी वो भी अंदर से गड़बड़ हो रहा है, उसका गुड़गुड़ हो रहा है, बहुत सारे हैं सर आएंगे। और करण जौहर का जो मैंने वो आंख में आंसू देखा था ना, मतलब बाप रे बाप, लग रहा था बाप रे, सिद्धार्थ जैसे उसका पेट, मतलब वो नहीं, उसके घर का कोई बच्चा चला गया है। कहाँ गया था ये लोग सुशांत के टाइम में? सुशांत को ये लोग दिखा नहीं था क्या? मतलब सुशांत था, एग्जिस्ट ही नहीं करता इन लोगों के लिए। और यही करण जौहर था जो आज बेचारा शाहरुख खान के पास भी खड़ा नहीं हो सकता है। यही करण जौहर था जो ड्राइव मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज किया था। यही करण जौहर है जिसका ड्रग केस का केस चला इतने दिन से। ठीक है सर, पैसा ठूसने दीजिए, कोई बात नहीं, एक के बाद एक आता रहे और हमारे सुशांत को जस्टिस मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे। चाहे बिनी लाइन पर कनेक्ट हो गया।
सर पहले तो मुझे कल ही आपका शो में जो आपने रात को किए थे तब मैंने कमेंट्स कर लिए थे कि ये सब आदत से मजबूर है, ये डेफिनेटली कि ये जो अपने आप को किंग खान कहते हैं उसी का बेटा होगा, क्योंकि ये तो सबको ही है लेकिन ये थोड़ा हद से ज्यादा है, तब थोड़ा बचपन में ही थोड़ा बचपन ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो ये पहले से ही मुझे लगा था। तो मतलब आज ही सुबह नजर में आ गया कि यही मेरे सर जी हैं। और जो स्टेज पे लाके सुशांत को क्या बोले थे कि तुम्हारा नाम है या पूरा पता है, अब कहाँ कहाँ पता देके फिरेंगे ये मिस्टर किंग खान जी। तो मुझे तो शर्म आता है अभी ये बोलने में, मैं कभी इनका फैन हुआ करती थी, मतलब ये जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, अब जब इनके पास पैसे आ गए, अपनी उम्र में ही वो रास्ते पे रहते थे और बेटे को क्रूज में भेज रहे हैं। मतलब पैसे क्या से क्या करवा देते हैं ये लोग इन लोगों को। जब खुद के पास पैसे नहीं थे तब रोड रोड में फिरते थे, अब जब पैसे आ गए तो बेटे को क्रूज में भेज रहे हैं विद ड्रग। क्रूज पे एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्रूज में ड्रग लेने की क्या जरूरत? तो वो लोग सिर्फ क्रूज में जाएंगे सिर्फ मस्ती करने के लिए? ऐसा कभी हो सकता है? बिना ड्रग्स के ये लोग पार्टी कर ही नहीं, ये लोग चल ही नहीं सकते हैं, एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। और किस किस का नाम बोले, हर किसी का बेटे, सब कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब अपने पापा को एक साइड में रख लीजिए, तो स्ट्रगल करके उठे हैं और अब सब भूल गए हैं और अपने बच्चे के ऊपर लो बेटा आगे बढ़ो और ड्रग्स लो। यही हम लोगों की नेक्स्ट जनरेशन है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही ना बॉलीवुड का सीख है, यही ना देते हैं ये लोग सीख। हम लोग अपने जनरेशन को ये सोच पर मजबूर करते हैं कि कैसे आगे अच्छी तरह से जा सकते हैं, और ये लोग ये सिखाते हैं कि कैसे अच्छी तरह से ड्रग्स लिया जा सकता है, किस तरीके से, कितने कितने तरीके से। ये लोग भी शायद इसका ट्रेनिंग देते होंगे कि बेटे इस तरह से मत लो, इस तरह से नहीं होगा, ऐसे लो। ये लोग इस तरह के हैं। और सुशांत के मामले में जो है, मैं तो ये कहूंगी कि मिस्टर कर्मा जो है ना, ये पीछे पड़े हुए हैं, इसको तो मिस्टर कर्मा ही बोलेंगे, क्योंकि एज ए पर्सन ये पॉलिटिक जस्टिस कर रहे हैं हर बॉलीवुड वाले को, जिन्होंने कुछ नहीं बोला था सुशांत के टाइम में, ऐसे सब गूंगे बहरे बन गए थे। अभी ये शाहरुख पे रुक जाएगा, मतलब आर्यन खान पे रुक जाएगा या फिर आगे जाएगा? नहीं, अगर आर्यन खान का फोन अगर पानी में क्रूज में गिर गया होगा, गुम गया होगा। नो, आर्यन खान का फोन तो एनसीबी के पास। अच्छा ग्रेट, मुझे नहीं पता था, तब शायद आगे बढ़ सकता है, क्योंकि करण जौहर जी का तो फोन गुम हो गया था, हर किसी का फोन गुम हो जाता है, हर कोई तो खुद ही गुम हो जाते हैं। तो अगर क्योंकि जिसमें एविडेंस रहता है वो चीज तो बॉलीवुड से पूरा ऐसे गायब हो जाते हैं, तो आप लोग हिंदी में रहता है ना कि दाढ़ी से ऐसा कुछ है, चोर की दाढ़ी से तिनका, ऐसा कुछ है, मतलब ऐसे गायब हो जाता है। मुझे ये हाँ, मतलब ऐसे गधे के सिर पे से सींग गायब होना, दैट इज द हाँ या सॉरी। तो वो मतलब ऐसे इस तरह से गायब हो जाता है हर एविडेंस बॉलीवुड में से। तो मैं इतना खुश हूँ कि सबके बच्चों को अंदर डालो, किसी को मत छोड़ो, सब अंदर जाए। नहीं, सबके बच्चों को नहीं डालना है, मतलब जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन्हीं के बच्चों को डालना है। सबके बॉलीवुड के तो हर स्टार किड्स ड्रग लेते होंगे, कोई भी बिना ड्रग्स के नहीं चल सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी मुझे मतलब ठोक के भी बजा के बोले, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर वो जो वीडियो हम लोग देखे थे जहाँ पे हर कोई निकल रहा है, हर किसी का बेटा निकल रहा है, सब क्या दूध पीते निकल रहे थे, वहां से कुछ नहीं था उन लोगों के पास। आज ना जो आ रहा है ना वो रुक ही नहीं रहा है। यस मधु गो अहेड, मौका नहीं मिल रहा है किसी को। और तनु उधर से हाथ दिखा रही है, अरे एक बार तो मौका दे दू, फिर तो बुलाओ। यस मधु प्लीज गो अहेड। सबको एक साथ ले लीजिए, एक साथ धोएंगे हम लोग। एक साथ कहाँ से लूं? हाँ, यस मधु। सर देखिए, मुझे आज तो ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मेगा बस्टर कोई हमने कोई मूवी देख ली हो। मतलब कल रात से तो मुझे लग रहा है कि हम लोग सच में एक और मूवी आ गई है, आर्यन खान की कोई मूवी रिलीज हो गई है और हम वो मूवी देख रहे हैं। और बहुत अजीब सी बात है सर, मेरे को जैसे लोग देखने की बात अगर किसी ने की ना तो अभी यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हो जाएगा, बॉलीवुड बॉयकॉट चल रहा है। सर देखिए, मुझे ना देखिए, जैसे सब बोल रहे हैं ना वो छूट जाएगा, वो ये हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है हो जाएगा, चलो मान लेते हैं। हमारा इंडियन जो सर लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो इसी तरीके से बनाई है
कि भले ही कितने भी जो मुजरिम जो होते हैं वो छूट जाए, लेकिन एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारा लॉ इस तरीके से बनाया गया है। तो काफी थोड़ा सा उसमें लूज है, जिसमें इस तरीके के लोग फायदा उठाते हैं, फायदा उठा जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन सर बात हुई है ना, ये छोटी बात है ही नहीं। आर्यन खान नाम है उसका, और उनके जो किंग जो कहते हैं ना सर, शाहरुख खान ने इस किंगडम को मेहनत से या जो भी करके इतने लंबे समय तक अपना किंगडम प्रिजर्व करके रखा था, ये सोच करके कि जब तक मेरा बेटा लॉन्च नहीं करता, इस गद्दी को संभालने के लायक नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके से एनी हाउ मुझे यहाँ पे राज करना है। और आज जो हुआ है ना सर, ये कोई छोटी मोटी चीज है ही नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना उत्तराधिकारी, कहते हैं ना सर कि अगर हम पे कोई हमला करे फिर भी हम बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को कोई हाथ लगा जाए तब तो हम तो जीते जी मर जाते हैं। आज जो शाहरुख खान की हालत है ना, कुछ इसी तरीके की होगी। शाहरुख खान पे आई होती ना सब। शाहरुख खान जी है कहाँ? सर शाहरुख खान तो लगे होंगे ना बड़े बड़े लोगों को कॉल करने में, अपना पैसा वैसा समेटने में, कह रहे कितने कहाँ कितने पैसे हैं, मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, किस तरीके से कानून में क्या दाव पेच खेलने हैं। तो अभी आपको आएंगे क्या, आम जनता को क्यों आएंगे बोलने के लिए? अभी तो वो अपनी चीजों को समेटने में, अपने डॉक्यूमेंट समेटने में, और कैसे निकल के क्या रास्ता हो सकता है उस चीजों में लगता है वो। या हमें आकर के कैमरे पे उनको कैमरे पे आने की का शौक थोड़ी ना हमारी तरह के, हमें कैमरे पे आके बोलना है 2 मिनट का सर चांस दे दें। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर शाहरुख खान इज रिफ्यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट। बोला कि नहीं, ही विल नॉट मेक अ स्टेटमेंट, ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड। वेयर इज मिस्टर खान? आई वांट टू नो दैट। वेयर इज ही? स्टेटमेंट तो तब आएगा जब मिस्टर खान का पता चलेगा। मिस्टर खान क्यों नहीं जा रहे एनसीबी? ऐसा पहला खान है, ऐसा पहला किंग है जिसको डर लग रहा है। ये कौन सा किंग है भाई जिसको डर लग रहा है? ये साम्राज्य का, ये पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और साम्राज्य में खुद ही किंग को डर लग रहा है। सर डरने की बात है, मैं बताऊं क्यों डरने की बात है। अगर शाहरुख खान सर अगर इस तरीके का अगर मतलब होता ना कि कुछ नहीं हो सकता था, अरे कुछ नहीं होगा, तो इतनी बड़ी बात होती नहीं। आपको क्या लग रहा है आर्यन खान तक पहुंच जाना कोई जो वानखेड़े हैं उनके बस की बात थी क्या? इसके पीछे कितना बड़ा पावर होगा वहां। मेरे को पता है कल रात को क्या लगा। फुल दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 20 घंटे बाद अरेस्ट हो जाना, सोचो कितना प्रेशर पड़ा होगा, बावजूद उस प्रेशर को सस्टेन कर अरेस्ट कर लेना, ये छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं किया होता तो अभी नीना मैम बोल रही होती, देखो हुआ क्या, 20 घंटे बाद छोड़ दिया। ये अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। नीना मैम से पूछूंगा मैं कि शी शुड टॉक ऑन दिस, बिकॉज अल्टीमेटली अगर छोड़ दिया होता तो ये डिबेट ही नहीं बचता। 20 घंटे बाद आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली। सर दो रीजन है सर। देखिए एक तो होता है जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फूट ही जाता है। आप कितने भी बड़े हो, मतलब कितने भी बड़े रावण जैसे राक्षस भी पैदा हुए, लेकिन उनका भी एक बार टाइम आया, घड़ा भरा, फूट गया। और देखिए यहाँ पे ना एक तो आर्यन खान के क्रूज तक पहुंचना, समुद्र के बीच में पहुंच के उसको अरेस्ट करना, ये छोटा मोटा गेम है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल सी बात है। आपको पता है सर, आप म्यूट पे हैं, मुझे रात को पता है कैसा लग रहा था कि अरे बाप रे, ये क्या पुलिस वाले सब आर्मी लेकर के हवाई जहाज से चले गए क्या, वहां से उतर के उसको अरेस्ट किया। फिर बाद में स्टोरी है कि नहीं, वो तो पहले से बैठे हुए थे। तो इतना बड़ा अरेंजमेंट करना। 27 मेंबर टीम ने बाकायदा 80,000 रुपए पर मेंबर टिकट खरीदा, और वहां पर भेष बदल के पहुंच गए, और भैया ऑर्गेनाइजर्स पहचान भी नहीं पाए। वाह, वही तो, ये छोटा मोटा प्लान नहीं था सर, ये इतना भयंकर बड़ा प्लान है ना जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ पायल बोलो ना। हाँ सर, एक और मुझे क्वेश्चन है कि जिसका बेटा ड्रग्स में है, एनसीबी के दरबार में है, वो बायजू का एड दे रहे हैं बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करवाने के लिए। तो क्या बच्चे फ्यूचर ब्राइट करेंगे? कैसे ड्रग्स लेते हैं क्या बायजू में वो सिखाया जाएगा? तो इनको भी बॉयकॉट करना चाहिए कि बायजू में हम लोग इनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। वो एजुकेशनल ऐप है कि ये लोग अपने बच्चे को एडुकेटेड नहीं कर सकते हैं, और बायजू में जाकर बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। हमें तो ऐसे नहीं चाहिए। जो लोग रियल हैं, अगर वैसे कोई टैलेंटेड पर्सन को आप लेकर आ सकते हैं जो अपने बच्चों को सही तरह से शिक्षा दिए हैं। मुझे एक जगह पर लगा कि माधवन का बेटा शायद ब्रोंज जीते हैं
ऐसा कुछ अगर वो कुछ प्रमोट कर सकते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ, तो कि वो कुछ किए हैं अपने बेटे के लिए। लेकिन जो जो किंग खान कहते हैं, पैसे की गद्दी पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को ड्रग्स कैसे लिया जाता है वो सिखाते हैं। should immediately drop him immediately. डेफिनेटली Absolutely. बायजूस को, आपको भी, हम लोगों को भी बोलने, एक अपील करना चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों को चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। बायजूस इन लोगों का बैकग्राउंड तो कम से कम देख ले, It is not about that. क्यों ये लोग लेते हैं। It is not about our choice to see and whom not to see. It is about Byju being an educational app. और Byju जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है वो ऐसे शख्स को प्रमोट नहीं कर सकता जिसके फैमिली का डायरेक्ट मेंबर ड्रग अब्यूज में अरेस्ट हो गया हो। नहीं हो सकता। उसका बेटा ही है और जो बच्चों की ही ऐप है, तो ये कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। सर एक बात बोलना है, सर हेलो, हाँ प्लीज गो अहेड, बोलिए। हाँ सर, बोल रही हूँ कि शाहरुख खान का बेटा मतलब आर्यन, उसका तो लॉन्चिंग था बहुत रिसेंट, लेकिन लॉन्चिंग तो दूसरे तरीके से हो गया सर। देखिए सर, फिर से एक पोएटिक जस्टिस हो रहा है। क्या जस्टिस हो रहा है? अब इसका बेटे को कोई ना कोई तो लॉन्च ही करेगा, देखा जाएगा एक दो साल बाद करण जौहर यही आके करेगा सर। फिर से उन लोगों को, हम लोगों का बॉयकॉट लेना पड़ेगा। हे भगवान, अभी से उन लोगों ने ऐसा काम कर दिया सर, फिर से हम लोगों का बेचारा लॉन्च नहीं हुआ, बॉयकॉट लिस्ट में चला गया सर। बहुत दुख हो रहा है मुझे। और तुम लोग वो इंसान हो जिस लड़के के पास एक ड्रग का एक सिंगल कोई क्लू नहीं मिला था, उसको तुम लोगों ने ड्रग ही बनाया था। तो आज कर्मा का जो तुम लोगों के ऊपर था, मतलब जो पड़ रहा है ना स्लैब, ये पढ़ना चाहिए और सबके ऊपर पढ़ना चाहिए धीरे धीरे। बेचारा लॉन्च हो गया सर, बहुत दुख हो रहा है मुझे, और फिर से हम लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात है सर। इतने अच्छे एक्टिंग, अगर इतने अच्छे एक्टिंग अगर लॉन्च करेगा, करण जौहर ही लॉन्च करेगा, और फिर से दोनों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। इन लोगों का लॉन्चिंग और बॉयकॉट हम लोग का चलता ही रहेगा सर, जब तक हमारे सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा। yes. एक मिनट, मैं बोल रही थी कि अगर वांगखरी जी इतने अच्छे एक्टिंग किए हैं कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोगों को उनको ही प्रमोट करना चाहिए। मुझे सर एक ही चीज लगा है, दिखाए वांगखड़े सर को मैं सोच रही हूँ सच में उनके ऊपर कितना प्रेशर हुआ होगा, मतलब कितना। आई थिंक शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी प्रेशर आया होगा कि डोंट अरेस्ट, ही इज अ वेरी वीक पर्सन। मिस्टर शाहरुख खान owns which IPL team? सो उसके बाद भी मतलब हैट्स ऑफ टू IPL टीम ओन करते हैं वो। उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा किससे है? तो कॉल किसका आएगा? और लेकिन सर एक्चुअली हाँ, तो किसका कॉल आएगा? वो किसको दिया था? किसको वोट देके इलेक्ट किया है? सर स्टूडेंट्स टोटली कॉमेडी शो हो गया। लेकिन सर वांगखड़े सर को हैट्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से जो प्रेशर सहा है, एंड आई फील वन थिंग, आई कैन ऑल्सो फील दैट मेरे ख्याल से अब तो इनके लाइफ धीरे धीरे डेंजर जोन में जा रहा है सर। इतने एक के बाद एक वो करते जा रहे हैं ना, कुछ नहीं जा रहा है। System is very strong. The system is decided from the top. Madhu is absolutely right. Yes. ये हो ही नहीं सकता. The instruction comes from Mr. Sameer Wankhede. Mr. Sameer Wankhede is executing right somewhere else. So right. How can he not be protected? He is fully protected. छू के देखो, हिम्मत है तो छू के देखो। Anyway सर, हम लोगों को बॉयकॉट करने का और 2-3 रास्ता मिल गया, 2-3 पर्सन मिल गया। मैं बता रहा हूँ, पूरी देश की जो जनता है ना, अभी इसी वक्त खड़ी हो जाएगी, इसी वक्त। अच्छा, अगर उनके हाँ एकदम ये बात तो सही है, पूरी दुनिया की जनता, पूरी दुनिया की जनता एग्जैक्टली। एनीवेज मैम, मैं ये बोल के जाऊंगी कि हम सबको फिर से मिल गया लॉन्चिंग देन बॉयकॉट, लॉन्चिंग बॉयकॉट आएगा जाएगा, हम लोगों को करना है। अभी क्या करें, बिफोर लॉन्चिंग हो गया बेचारा। एनीवेज, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, फाइल क्विकली कंप्लीट एंड देन नीना। अब केकेआर के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, कलकत्ता वासियों को, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ी मुद्दा हो गया है अभी, क्योंकि हर कोई तो बॉयकॉट में है। अब केकेआर कोई टीम हम लोग इतना फेवरेट है, एज ए क्रिकेट हम लोग बोल रहे हैं, नॉट द आईपीएल। तो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है, लेकिन मैं पहले देखती थी बिकॉज ऑफ सौरव गांगुली, क्योंकि वो थे। जब से वो चले गए हैं मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी तो ड्रग्स में है, इन सब में है, फिर केकेआर को भी। अभी तो आज ही तो केकेआर टीम जीती ना, आज ही तो जीती है केकेआर टीम। मैं नहीं देखती, मैंने कहा ना, मैंने पूरी तरह से आईपीएल मेरा भी बॉयकॉट है, इसलिए मैं नहीं देखती, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि और भी अब हम लोग भी थोड़ा मूवी बनाए कि भाग बॉलीवुड भाग, ऐसा कुछ जैसे उन लोग बनाए थे भाग मिल्खा भाग, वैसे हम लोग भी कुछ मूवी बनाए कि भाग बॉलीवुड भाग। पहले जो है वो देखना पड़ेगा कौन सी टीम को कौन ओन करता है, उस टीम को कौन बैक करता है, कौन से फिल्म का कौन प्रोड्यूसर है। उस फिल्म को हिट करने से पहले एक्टर के बारे में मत सोचो, प्रोड्यूसर के बारे में सोचो। माल सारा सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं लपेटा है, माल तो कोई और लपेटा। सर और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि पिछले एक साल से जो सबसे बड़ी बात हुए है, पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस को देखकर मूवी देखने जाते थे। हम लोग को पर्दे पे ये देखना है कि कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, किस तरह से वो लोग एक्टिंग करते हैं, कैसे कॉमर्शियल मूवीज है, ये है ज्यादा इंटेलेक्चुअल मूवी है तो हम लोग बोलते हैं अरे यार बोरिंग मूवी है, ऐसे करके हम लोग निकल आते थे। लेकिन पिछले एक साल से जो सबसे बड़ी हुए हैं, जो अच्छे कंटेंट है वो बाहर आ रहे हैं, और हम लोग सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस नहीं, जो उनके पीछे जो बैकग्राउंड में जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग उनको देखना चाहते हैं कि कौन उसके पीछे कितने मेहनत दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों का भी नॉलेज बढ़ा है। एक साल में सुशांत जाकर पता नहीं हम लोगों के कितने की आंखें खोल दी है। To be launched as assistant director is Mr. Saif Ali Khan's son. Please watch it. Assistant director. Yes. कैमरे के पीछे. Okay. Karan Johar. Next assistant to Mr. Karan Johar is going to be Saif Ali Khan's son. अच्छा, क्या राजा और रानी अभी तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि और भी कुछ अरेस्ट हो, और भी कुछ हम लोग बातें बना सके, अच्छा चले। Thanks, Payal. Thanks a lot. Yes, Neena ma'am, please go ahead. सर बस मैं तो यही बोलूंगी, आप जो बोले वानखेड़े सर, मैंने तो कहा आई सैल्यूट द वानखेड़े एंड हिज टीम, दे डू अ ग्रेट जॉब। लेकिन वो फिर बाद में जो होता है ना, उसमें गुस्सा आता है और कुछ नहीं होता। Coming to you, Tanu, just stay on. I'll just come to you after this. Yeah. Yes, go ahead. Neena ma'am बोलिए, आप बोलिए। Yes, वही मैं कह रही थी, आप तो इधर आगे बोल रहे थे कि एनसीबी टीम अपनी जान पर खेल कर वहां गई और जो कुछ भी किया, हेड्स ऑफ टू देम, मैंने हेड्स ऑफ दिया था उनको, एंड आई रियली सैल्यूट देम फॉर देयर हार्ड वर्क, और जो भी ब्रेवरी उन लोग दिखाकर जाते हैं करते हैं, लेकिन फिर बाद में जो होता है वो लेके हम लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं। दैट्स इट। अदरवाइज दे आर डूइंग अ ग्रेट योर पॉइंट इज वैलिड, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। वो तो मैं अपना काउंटर को लीगली बता रहा था, बट पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर एक आम आदमी एक ही जुर्म के लिए 20 दिन रहता है जेल में, तो एक स्पेशल आदमी 2 दिन क्यों रहेगा, वो भी 20 दिन रहेगा। यस एग्जैक्टली, रूल सबके लिए, लॉ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है तो आप लॉ को बाय कर लेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। बेसिकली बेसिक पॉइंट दैट यू आर मेकिंग इज दिस कि अगर एक जुर्म की सजा एक है, तो अगर एक आदमी 20 दिन रह रहा है तो दूसरे को भी 20 दिन रहना चाहिए। एक को बेल 2 दिन में, दूसरे को बेल 20 दिन में, तो ये आखिरी अगर अंधा कानून देखा है किसी ने तो फिर यही है। ये अंधा कानून और इससे फिर क्या होता है, सबको शेयर मिलती है ना। जैसे आप देखें आज रिया चक्रवर्ती भी ठीक है, वो 1 महीना जेल में देकर है, लेकिन शी इज द प्राइम सस्पेक्ट। अब कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, वो मजे से घूम रही है, उसका भाई मजे से घूम रहा है, जितने भी सारे लोग बड़े मजे से घूम रहे हैं। तो इससे हम कोई क्या लेसन दे रहे हैं, हम दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं या कुछ इस तरह की लाइन में, उनको हम क्या मैसेजेस दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा भैया, करे जाओ उल्टे काम, निकल जाओगे कभी ना कभी, 1 महीना 2 महीना रहोगे, निकल जाओगे तुम। तो ये बड़ा रॉन्ग एक इम्प्रेशन हमारा जुडिशियल सिस्टम का लोगों के ऊपर, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करती मैं सब जगह की बात करती हूँ। तो हमारा जो साउथ एशियन कंट्रीज है, वहाँ तकरीबन सब जगह ऐसे ही रूल चलता है, विच इज वेरी डिसहार्टनिंग। नहीं कई सारे साउथ एशियन कंट्री में तालिबान रूल भी चलता है, सो लेट्स नॉट कंपेयर।
हाँ वो छोड़ दे आप, उसे उनको बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हाँ हम वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री उनमें करेक्ट कंट्री उनकी बात करते हैं कि वहां पर इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक लॉ बराबर लॉ, क्योंकि लॉ बहुत एक हाईएस्ट एक बोलते हैं ना सिस्टम ऑफ आवर कंट्री है। अगर वो उनका ही अगर मजाक उड़ाया जाए, उनका ही अगर कोई वैल्यू अगर वो कमजोर होता है तो फिर सब लोग कमजोर होते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट यही है। परफेक्ट, यस मैनी प्लीज गो अहेड, यू गो नेक्स्ट। मैनी आपने खुद को म्यूट कर लिया। यस प्लीज गो अहेड, मैनी बोलिए। फिर से आपने म्यूट कर लिया, मैं कर रहा हूँ। 1 minute, यस नाउ स्पीक। Okay. So, sir, basically, there is this book that Sushant Singh really used to like, and it is called Ways of Seeing. So, right now, I am going to focus more on what I am seeing as things are unfolding and how law of karma is taking its own course. Is that now it very clearly shows how Sushant was not able to fit in Bollywood. Because he was somebody who was very strong with his principles. He was somebody, he did not want to get involved in this drug and whatever came along with it. He did not want to be part of any group which propagated this kind of stuff, because now we know how Sushant was. He was very educated, he was very strong moral, he had various other things. But uska kya tha ki he was very talented and he was giving hit per hit and very profitable movies, which the people from Bollywood couldn't really take it. So they didn't want an honest person to become a youth icon. तो उन्होंने ये चक्रव्यूह बनाया जिसमें जो उनके ग्रुप में नहीं आना चाहता है उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, especially if that person is so popular and is doing so well. His career has been systematically diluted, no doubt about it. So Absolutely after the Khans, if you look at which all people came, there was a Hrithik Roshan in between, who was a star kid. But somebody who came from outside the industry, somebody who gave challenges, was Ranveer Singh and Sushant Singh Rajput. Ranveer Singh to ghulmul gaya hai in sab mein. We know that very clearly. But Sushant was the one who was taking a stand. He did not want to be part of it. Is not an outsider. Many Yes. You are in a fool's paradise. Okay, his grandmother was in film industry. He is not an outsider. He is well connected. He is from connected. He is linked to Anil Kapoor family. Yeah, I know, his second cousin of his. So he is not an outsider. Okay, so Sushant was one person who was very popular, who was giving profit. Sushant is an outsider. Kartik Aaryan is an outsider. Ayushmann Khurrana is an outsider. Yes. Ayushmann Khurrana is an outsider. Yes. These are outsiders. Vicky Kaushal is an outsider. Yes, but sir, Rajkumar Rao is an outsider. No, Vicky Kaushal is not an outsider. Vicky his father is something similar to what Ajay Devgan's father was. Fight. जो Veeru Devgan. director होते हैं. Yes, he was similar to that. He's not from outside. Vicky Kaushal is not outsider. Okay. Let's have it not okay. So what I'm saying, I stand corrected. Yeah. So what I'm saying is that even more than Ayushmann Khurrana, Sushant Singh Rajput gave blockbusters. He was a star actor, not just an actor. He was a star actor. 7 out of 12. Agreed. Yes. And because they did not want to replace anybody except for with their own children. वो जो आप गद्दी की बात कर रहे हो ना, nobody, they didn't want to leave the throne, all of them. मुझे तो बैनी से तो एक छोटी सी बात, और छोटी सी बात ये है कि एक आदमी की एक ब्लॉकबस्टर आती है दिसंबर 7th 2018 में, जो 2019 में ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जिसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, उसके बाद फिल्म आती है छिछोरे, जो जुलाई में लॉन्च होती है। लॉन्च पार्टी जुलाई में होती है और सितंबर के बाद वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। वो अपने खर्च से कहीं गुना ज्यादा पैसा कमाने। yes. उसके बाद उस एक्टर के पास जिसने 2 ब्लॉकबस्टर दिए, उसके बाद सिर्फ एक फिल्म होती है, और वो कौन सी होती है? दिल बेचारा। बस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली तो सर वही मैं कह रही हूँ कि अब ये पिक्चर और ज्यादा क्लियर होती जा रही है। जैसे लोग कहते हैं ना कुछ नहीं हो रहा, मेरे लिए बहुत कुछ हो रहा है, because slowly it is making it very clear why Sushant was being targeted. It's only re-emphasizing. उनके अपने बच्चों को उन्होंने ड्रग्स में डाल दिया है, तो दूसरे को तो कैसे छोड़ेंगे वो? Correct, I agree. Valid point. Absolutely. Because they've understood in order to stay with the underworld, it's all interconnected. ड्रग्स कौन लेकर आता है कंट्री में?
Sir, It's a national nexus. threat है. I told you long time back, sir. It's a Drugs is a national threat. worldwide problem. It's not just in Bollywood. If we are saying we are shocked to see उनके लड़का ड्रग लेता है, आप दिल्ली के स्कूल्स में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ. शॉकिंग नहीं है, ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम है, और वो ऑर्गेनाइज क्राइम किसी वक्त में दाऊद इब्राहिम चला रहा था, आजकल इंडस्ट्री के अपने लोग चला, अपने लोग चला. Exactly. Right. ये क्रैकडाउन ऐसे थोड़ी हो रहा है मैनी, ये क्रैकडाउन सोच समझ के हो रहा है. Yes. So, sir, this is what is making it more and more clear. So, all these things that are happening, it's all related with Sushant's case. जैसे आपने शुरू में बोला था, everything is connected with Sushant's case. एक साल मिला इनको टाइम कि भैया support him, come and support him. कोई नहीं आया ना. 16 महीने. Yes. 16 महीने. कोई नहीं आया ना. तो गॉड ने बोला कि भैया अब मैं तुमको बताता हूँ कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है. ये कलयुग भी हो चाहे, पर भगवान. आज अगर सुनील शेट्टी ये बोलेंगे भी ना कि ही इज अ किड, कोई सिंपैथी नहीं मिल रहा है ना कहीं से, क्योंकि आप खड़े ही नहीं हुए. सर किड उनके लिए होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से देखे हैं. हमारे लिए तो किड नहीं है ना. No, I'm not talking about that. I'm saying his attempt is to create a sympathy. Yes. Public is not willing to buy that sympathy. Yes, because like you saying, नहीं चाहते. like you said, हमारा कोई सुना ही नहीं. हम कितना बोलते, आज तक बोल रहे हैं. And I'm telling you, sir, I go and read on so many platforms people's comments. People are just as much in. हम सोचते हैं ना वो खत्म हो गया मूवमेंट या कम हो गया, नहीं. People don't have time to come and watch, but they are writing comments when they get the time. It's non-stop. It's non-stop. कौन सा ऐसा केस है जहां तक इतनी देर से मूवमेंट चलती रही है और आज भी I'm talking to you with equal passion. It's not died down. It will never, ma'am. It will never be, ma'am. Recognition. We want to say something very bad happened to him. यानी उसका रीजन ये है कि आज भी अगर थोड़ा भी न्यूज होता है ना तो 1000-15 लोग तुरंत से आ जाते हैं, तो इसका मतलब लोग एक्टिव है. Sir, not only that, I've also seen Koreans, Africans, जो बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि बॉलीवुड होता क्या. उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की, केदारनाथ की वीडियोस बनाई हुई हैं और लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं. And this is as recent as 2 or 3 months back. Perfect. Yes, Tanu, quickly conclude. Yes, sir. 3 points. Sir, 3 points. Sir, पहले जो नीना मैम ने कहा था कि मुंबई में जैसे अब ये आएंगे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए रखे हुए हैं, सर उस प्रोसेस को, उस चेंज को आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा सर. Okay. It will be. My second point is that definitely Shah Rukh Khan is hiding in some Gulf country. Okay. That is the best. He has a house in Dubai. He has multiple houses. Multiple houses in Dubai. He is hiding in there for sure. And sir, third point is that if this generation goes like this, आगे आने वाली मूवीज जो बनेंगी वो बनेंगी भागो छिछोरो भागो. That's all I have to say, sir. भागो छिछोरो भागो यहाँ से. Yes, Malu, please go ahead. Please go ahead. आप दोनों एक साथ बात कर सकते हैं जब भी किसको बोल रहा हूँ. हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जहाँ तक सुनील शेट्टी जी ने कहा कि वो 16 साल वो बहुत छोटा बच्चा है, इज ए किड. हाँ, हो सकता है वो किड है, लेकिन अगर आपको मालूम होगा कि भारतीय सेना में हमारे यहाँ 16 साल के बाद जवान चले जाते हैं, तो 16 साल का बच्चा भी हमारे देश की रक्षा कर सकता है. तो ये 23 साल का लड़का ड्रग्स लेकर के कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रहा, और ये कोई बहुत ही छोटा बच्चा नहीं है. 16 ये छोटा नहीं, बच्चा नहीं है, ये सीधी बात. हाँ, सीधी बात है. और अगर छोटा है तो वो 1.25 लाख रुपए लेकर के पॉकेट में नहीं जा सकता है. जहां तक रही ये बात की इनको पकड़ा गया है, बड़े समझदारी से पकड़ा गया. आफ्टर दीपिका पादुकोण's case, after when Deepika Padukone came before NCB, she was saying कि मेरे पास तो ये मोटी सिगरेट, पतली सिगरेट और ये वो जो उसने बातों में उलझाया, that was a lesson. After that, the NCB never caught any culprit without evidence. So when they were in that cruise, they let the party to start, and as it moved on,
जो आई मीन इट वाज ऑल उन्होंने डिस्कनेक्टेड, पूरा पूरा रंगे हाथ पकड़ा है, और रंगे पकड़ना हाथ भी में रंगे हाथ होता है, एविडेंस के साथ पकड़ा वरना है। डिनाई हो जाएगा। हाँ, डिनाई होगा, इसलिए उन्होंने एविडेंस के साथ पकड़ा। जब वो पार्टी, उन्होंने पार्टी को स्टार्ट होने का वेट किया, और इवन उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स को भी नहीं पता था, जब वो आधे रास्ते में, मतलब बहुत दूर, जमीन से दूर चले बहुत जा चुके थे पानी में, तब उन्होंने स्मार्टली किया। और फिर वहां पे कोई हेल्प नहीं आ सकती ना, वहां पर नोबडी कैन जो कम एंड जो हेल्प। जो रिंकू बोल रहे हैं ना, उसको आप मेरे वीडियो का टीजर समझिए, और प्लीज वॉच द वीडियो जो लास्ट नाइट मैंने किया है, इसको आप टीजर समझे उस वीडियो का। यस, गुड रिंकू, यू आर गिविंग अ गुड टीजर टू माय वीडियो। प्लीज जिन्होंने नहीं देखा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो एग्जैक्टली वही कह रहा है जो रिंकू कह रही है। रिंकू मेरा वीडियो देखकर मेरी पब्लिसिटी कर रही है, अच्छी चीज है। थैंक यू रिंकू सो मच, आई अप्रिशिएट। हाँ सर, आपकी पब्लिसिटी भी है और सत्य की पब्लिसिटी। वी आर स्टैंडिंग फॉर द ट्रुथ। हम आज की तारीख में हम शाहरुख खान को क्यों हीरो बनाए, हम समीर वानखेड़े को क्यों ना हीरो बनाए, हम सुनील झा को क्यों नहीं वीडियो जो हमारे लिए सर, you were saying I am earning just एक में चॉकलेट के बराबर, एक चॉकलेट के बराबर पैसा कमाना, तो उससे ज्यादा तो समय ही तो पैसा है। जो इतना पैसा लगा रहे, तो जो लोग हम सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे आइडियल होने चाहिए कि हमें हर वक्त पैसा नहीं दिखना चाहिए। और सर, इस बॉलीवुड की, इस पॉलिटिक्स की और इस क्रिकेट की सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ पैसा है। जब पैसा मेहनत से कमाया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। इस देश में आपको एक वक्त चुनना होता है, और एक वक्त आता है, कुछ लोग होते हैं जो ऑनेस्टी को भी एक प्रिंसिपल मानते हैं, और अगर सब लोग बेईमान हो जाएंगे ना, तो ये देश खत्म हो जाएगा। और जब मैं ये बात कहता हूं ना, तो आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग दिस, आई बिलीव इन इट, आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ स्क्रूटिनी, एब्सोल्युटली नो fear at all, because 28 साल में I had a lot of opportunity, I could have done much more, but by God grace I have everything, and to be honest is a big task। बहुत मुश्किल है honest रहना इस देश में, बहुत मुश्किल है, बहुत temptations होती है सर, में आपको dishonest बनाने की कोशिश की जाती है। तो I hats off to people like समीर वानखेड़े जो इसको resist करते हैं और honest रहते हैं। I wish that we have more people like Sameer Wankhede in the system. This is the high time to change our ideals. It is the high time to think, and we should think that taking drugs is no cool, and the people like Aryan Khan and other celebrities whose children are into drugs, they should be exposed and they should be brought into the notice, because this is a national threat, because India is a country where we have the youth. This is one of the most youthful country, and you know that there is a country where where nothing is grown, only afim is grown, and that is the only way they earn money, and where they are going to send, where ज्यादा पैसा, ड्रग डीलिंग से ज्यादा पैसा किसी चीज में नहीं है, और देश में ड्रग्स तो आ रहे हैं, तो फिर देश में ड्रग्स आ कहां से रहा है, मैं जानना चाहता हूं। सर, आज की तारीख में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, ये सबसे ऐसे काम है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, और उसके बाद आता है वेपन्स, एंड देन रिंकू प्लीज क्विकली कंक्लूड, वी हैव ऑलरेडी स्ट्रेचिंग बियॉन्ड टाइम। Yes. Sir, this is what I want to say here, that this his karma is paying, and here what I want to say, that एक भी जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो उनके कोई अगर उनका फैन का कुछ बुरा होता है, तो they come and mention, they come and quote, and they just say they show their sympathy toward that कि हमारे साथ हमारा ऐसा कुछ हुआ, और आपने इन 15 महीनों में कहीं नहीं आपने ऐसा किया। वो इसलिए नहीं हुआ रिंकू, क्योंकि वो एक शब्द है, हाँ। वो है ज़मीर। आपके पास ज़मीर होना चाहिए इस बात की फिक्र करने के लिए कोई इंसान मर गया, आपको ना उस इंसान के मरने की फिक्र हुई, ना आपको उन करोड़ों लोगों की फिक्र हुई जो चिल्ला रहे थे जस्टिस के लिए, आपको सिर्फ एक ही फिक्र हुई, हमारी सत्ता चलते रहनी चाहिए। तो आपने जो साम्राज्य बनाया, किंग खान ने जो साम्राज्य बनाया, वो आज ढह गया है। एक छोटे से ऑफिसर ने, जिसका साम्राज्य बहुत छोटा है, आपकी तरह नहीं है, उसने बता दिया कि एक ईमानदार अफसर क्या होता है, और साम्राज्य जब किसी चीज पे खड़ा होता है ना, तो उसका नतीजा होता है आर्यन खान।
नहीं सर, हमारे जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनके मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे लोग उनको सुनते हैं। जिसकी 5 शादियां टूट चुकी होती हैं वो एक कॉलम लिखती हैं कि भाई कैसे अपनी शादी को बचाएं, वो लिख रही होती है। जिन्होंने घर में कभी रोटी नहीं बनाई होती है वो आटे का एडवर्टीजमेंट कर रही होती हैं। जिनके बच्चे ड्रग्स ले रहे होते मेरा हैं सवाल ये है, मेरा सवाल बायजूस ये का है कि एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। ये वीडियो बनाए, ये किताबें लिखे, ये एडवर्टीजमेंट करे, आप देखते क्यों है? कौन देखता है इसे? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, खरीदता कौन है? सर ना आप छोड़ खरीदोगे दिया ना ये सब कुछ छोड़ दिया देखने के लिए। न्यूज चैनल भी तो 5 मिनट के बाद ना, बंद मैं करके अपनी बात दिखाता है। ना ना ना, आप अपने को खुद को मत डालिए इसमें। मैं कह रहा हूं जब किताब लिखा जाता है तो उसको खरीदता कौन है? जब तक बायर नहीं होगा, सेलर नहीं होगा मार्केट में। प्रोड्यूस अगर है, प्रोडक्ट अगर है और उसका डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो डिमांड कहीं है तब प्रोडक्ट बिक रहा है। एक सिंपल सी बात, इकोनॉमिक्स है। और आप जो है गुटखा बेच रहे हैं तो बेटा भी वही खाएगा। आपने जो अपने आदर्श बनाए थे कि आप गुटखा बेच रहे थे, तो गुटखा बेच रहे थे तो बेटे ने थोड़ा सा उसका एक अपर वर्जन यूज कर लिया, उसका रिफाइंड वर्जन यूज कर लिया। गलत नहीं, हाँ? गलत नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और ये बहुत जरूरी है कि ये एक्सपोज हो एंड I was telling earlier, we have अगर आप पुराना अपना हम कोई भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आप देख रहे हैं, मैंने शुरू से कहा है कि सुशांत का जो केस है ये इस फिल्म इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट होगा। इट विल बी सेटिंग अ माइलस्टोन एंड हियर we don't want any other case to anyone to die like Sushant. Tomorrow also. We don't want anybody to die like him. और उसके बाद मैंने वो कहा था ना सर आपको, मैंने ये शायद तीसरी बार मैं बता रही हूँ कि जब जड़ें गहरी हो ना तो समय लगता है धीरे धीरे जड़ को हिला हिला के निकालने के लिए, ताकि पूरी की पूरी जड़ निकले और पूरी समस्या का समाधान हो। यहाँ पर एक शाहरुख खान का बेटा या आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है, कोई नहीं होगा और उसके बाद ही इस समस्या का सर ये हमारे देश की पूरी परेशानी है। ओके she can become a good politician. My God, हाँ। Yes, Neena ma'am, please go ahead. सर मैं सिर्फ 3 बात बोलूंगी। एक आपके लिए बोलूंगी, कर्म कर फल की चिंता ना कर। ना बिल्कुल, ठीक कोई है। Yes. आपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फल आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। Thank you so much. Thank you. और बॉलीवुड के लिए मैं ये बोलूंगी कि जैसे कर्म वैसे फल। उनके कर्म इतने खराब है अब तो कि उनको फल भी वैसे ही मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये पोएटिक जस्टिस हम बोलते आ रहे हैं बहुत दिनों से, ये वो है या कोई ऊपरी की कोई शक्ति है, कोई किसका का कमाल है जो ये सब निकल के आ रहा है, जो इतने सालों से जिसको हम लोग आइडलाइज करते थे, हम लोग पागलों की तरह इन लोग को पूछते थे। लाइक शाहरुख खान की मूवी, मैं कभी उसकी कोई मूवी नहीं छोड़ती थी। आज ऐसा हो गया कि मैं उसको टीवी में भी देखती हूँ ना तो मेरा मुंह बन जाता है, मैं टीवी का चैनल हटा देती हूँ। आई रियली डोंट। शाहरुख खान क्या बल्कि जितने भी मतलब बॉलीवुड स्टार है, मुझे सबसे एक तरह से घिन आने लगती है इन लोगों को मैं देखती हूँ तो। सुशांत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना मैंने उसकी कभी कोई पहले उसके जिंदा रहते हुए मैंने उसकी कोई मूवी नहीं देखी। Many, can you connect if you have read what Priyanka Singh has said? If you can just come and tell us, because I don't have an access. So if you are there, you can connect and tell us what. यार इनको आप देख सकते हैं, बताइए क्या प्रियंका सिंह ने कुछ ट्वीट किया? Many is connected, so many can tell us. Yes, yes, ma'am. पूजा भट्ट ने ट्वीट किया। One second, Neena ma'am, one second. Let Manny tell us कि exactly क्या बोला उसने। Yes, Manny, please go ahead. पूजा भट्ट का भी ट्वीट आया है। पूजा भट्ट का ट्वीट क्या है बताइए? Manny, please, you are. She's sympathizing with Shahrukh Khan. Sir, actually, can you read that out? Yes, actually, Sabika only has shared this with me. Sabika is good in all this. सर हिंदी में है, हिंदी में मेरी अच्छी हिंदी है नहीं, पर इसमें लिखा है अवाम जागरूक हो तो सियासतें हिल जाती हैं। ओके। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जेपी आंदोलन का एक वो है स्लोगन, इंदिरा गांधी के खिलाफ है। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या कहा है। प्रियंका ने लिखा है। हाँ, मैं नीना मैम वो बताइए पूजा भट्ट ने क्या कहा? पूजा भट्ट ने लिखा है, आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद यू IMSRK, not that you need it but I do, this too shall pass. Okay, that's what she's saying.
अच्छा 1 minute. Yeah. And there's another one. एक मिनट. Salman, 1 second. Salman Khan is also there. अभी तो सब Salman लिखेंगे. Khan, आप बता नहीं. Salman Khan visited Shah Rukh Khan's bungalow, Mannat, Yeah. in Bandstand. Yeah. Mumbai. The Narcotics Control Bureau arrested SRK's son, and after that, Salman Khan personally went to speak to Shah Rukh Khan. So Shah Rukh Khan is there in his house. So why is he not in the court? And he was seated in the front seat of his Range Rover. Salman was seen gesturing at the media personnel gathered outside Mannat to move and make way for his car to drive in. 1 minute. Okay, that's all. यानी सलमान खान शाहरुख खान से मिलने उनके घर मन्नत गए थे to tell him nothing to worry, I'm standing with you. So now maybe they have seen our show, and that's why now suddenly they have started to queue up. Maybe. सर एक और लिखा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम. Yes, correct. वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती. तो चर्चा नहीं. I will tell you 1 second. मैंने खोल दिया है प्रियंका. Akbar Allahabadi. It's written by Akbar Allahabadi, but it's Akbar Allahabadi is the writer. 1 minute. प्रियंका सिंह ने रीट्वीट भी किया है. सी शर्मी का ट्वीट है जो उन्होंने रीट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है, इन द मिड्स ऑफ ऑफिसर्स लाइक परमबीर सिंह, सचिन वाजे एंड त्रिमुखे, the one-man army, Samir Wankhede, has made us believe that law is equal for all. Salute to your and your team's efforts, sir. Okay, that's she has retweeted. उसके बाद प्रियंका ने सुशांत का एक पिक्चर लगाया है विद अ कॉफी मग और उसमें लिखा है, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती. उसके बाद एक और ट्वीट किया है, आवाम जागरूक हो तो सियासतें हिल जाती हैं. आवाम जागरूक हो तो सियासतें हिल जाती हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. यानी वक्त आ गया है बॉलीवुड और बॉलीवुड के शहंशाह अपनी सत्ता खाली कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपकी जगह कोई और आएगा और वो इस सिंहासन को संभालेगा, क्योंकि आपने तहस नहस करके रख दिया. बहुत ही सही बात कही है प्रियंका ने. वेल डन. Exactly. That is what I was saying. That is what I was saying पहले also. That, you know, these people have just kind of captured the throne of Bollywood and weren't letting anybody come in. And Sushant Singh Rajput was that guy who would have overthrown them. Super, well done Priyanka Singh, and well done Samir Wankhede, and well done all the entire team of NCB, because ये करना छोटी बात नहीं है. इसको छोटी बात ये समझ सकते हैं कि बेल मिल जाएगा, ये हो जाएगा. नीना मैम, ये सारे कंसर्न जस्टिफाइड है, बट बड़ी बात ये है कि अगर इसको छुआ ही नहीं होता तो ये बात निकलती नहीं. जब बात निकली है तो फिर दूर तक लग जाएगी. शाहरुख खान is in India. He is there till 7th October. अभी तो सलमान खान मन्नत में गए मिलने के लिए. 7th October तक वो है. कोर्ट क्यों नहीं गए? यही तो वो वहीं पर ही है. गौरी खान गए, वो क्यों नहीं गए? वो जाएंगे तो वो भी लपेट में आ जाएंगे ना बेचारे. डर है, ये डर अच्छी चीज है. ये डरते हैं ना, ये अच्छी चीज. ये डर के कारण सब पैनिक हो रहा है. मैंने प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो जनता का, जो पब्लिक का जो डर है ना, उसके कारण दे आर पैनिकिंग. इसलिए लोग गलती कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं. अभी अब देखिए, अभी तो बिग फिश कहाँ पकड़े गए, तो बिग फिश का वेट कर रहे हैं. And the best part is कि हम इतने टाइम से ड्रग्स की बातें हो रही हैं, NCB is on the job and their children are still carrying drugs. I'm like, they are not, because उनको लगता है कि वो निकल जाएंगे. That is exactly what I was telling you. कि आप सोचिए कि क्या गट्स है. Yes. कि वो लड़का अपने घर से निकल रहा है ड्रग्स लेकर और आराम से पार्टी मना रहा है, और जब पकड़ा जा रहा है तो बोला मैंने तो लिया, रखा ही नहीं है. उसको लग रहा है उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है. जैसे रिया चक्रवर्ती को लग रहा था उसने क्या गलत काम किया है. वो तो बड़ा इनको ड्रग्स से पकड़ना तो मुझे लगता है नॉर्मल चीज है. ये बहुत क्या गलत काम कर रहे हैं. और वो जब क्रूज में चढ़ रहा था तो क्या कोई चेकिंग नहीं हुई होगी? उनकी बैग में से निकल रहा है ड्रग्स इतना सारा, ये कैसे हो सकता है? It's all about the money, the status symbol, where which families that's what they I'm belong. saying. The money plays a big role, yes. na? The money plays a big role. Yes. Perfect. Anything else? Quickly, both of you conclude because we'll close the session. Sir, I think आज
पायल मंडल का शायद बर्थडे है। हाँ, पायल का बर्थडे है, मैंने विश किया था उसको। So happy birthday to her. Okay, please wish. So Payal, if you are there and if you are listening, yeah, many happy returns of the day. I wish you on behalf of the entire platform. So have a great life, have a great day, and also keep happy, keep smiling. So another thing I wanted is to request you is that if you can do maybe a day or 2 days show in which you can actually just have an open day, like what's on your mind regarding Sushant. If somebody wants to talk about something, an open session. If you can do that, because a lot of people probably would want to speak about different aspects. So काफी देर से We can do that on Saturdays. Yeah, so if you can do that, that'd be great. Perfect. Thanks. So that's all. So thank you so much, Manny. Thank you so much, Neena ma'am. Take care. Thank you, sir. 1 second. आज ना बहुत सारे लोग नजर नहीं आते, मुझे ढूंढ के उनको ऑफ स्क्रीन करना पड़ता है. So that's about it. We will not stretch this beyond this. ये बहुत बड़ी बात है कि आर्यन खान तक एनसीबी पहुंच गई. शाहरुख खान तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आर्यन खान तक पहुंचना अपने आप में बताता है कि अगर शाहरुख खान तक भी पहुंचना पड़ा तो एनसीबी हिचकिचाएगी नहीं. अब सवाल यह है कि आखिर वो बिग फिश यानी बड़ी मछलियां कौन है और कौन थी जिनकी तलाश एनसीबी कर रही थी. जाहिर है आर्यन खान वो बड़ी मछली नहीं है. Aryan Khan is not that big fish. So then who the big fish is? And will the NCB now go after that big fish? On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. Please do share the video, like the video, and also subscribe to the YouTube channel. And don't forget to press the bell icon and also choose notify on all occasions so that you are notified every time I come and speak on various topics. Thanks a lot for connecting. We'll come tomorrow and speak much more on this case because this is still developing. Tomorrow he has to be produced in the court because his custody with NCB is only till tomorrow. So tomorrow we'll see exactly what happens. Will he get bail or he goes to NCB for further interrogation or he goes to jail? So these are the three possibilities. Let's see what happens tomorrow. Good night.